for that. Hello everyone and welcome to today's session. It is our fourth session of our lecture series. Krutadnyata Foundation is a NGO which works mainly in the field of education, environment, awareness and women empowerment. We have conducted various lectures on self-defense, cyber security, orientation lectures for administrative services like UPSC, MPSC, even police for the police recruitment, etc. And uh, today we are there to know and understand the opportunities in education after 10th and 12th standards in India and abroad. Uh, Now, I would like to introduce our today's eminent speaker, Dr. Nandakishore Chandan sir. I will introduce him first. Dr. Nandakishore Chandan sir is an associate professor and vice principal and head of the chemistry department at Siddharth College, which is at Fort. He has an excellent academic record. He stood fifth in Amravati University in BSc and MSc respectively in the subject of chemistry. Um, he has done PhD. He completed his doctorate from a very prestigious Oxford University. He also has been awarded as Best Teacher Award 2 times. Uh, he has published 3 books, uh, 17 research papers till now. He also a board member of studies for St. Xavier's College, Mumbai. We welcome you, sir, and I request you to take over. Thank you. Very much indeed. Thank you. So, uh, I think there are some parents and student. Am I right, madam? Yes, sir. Yes, sir. Parents, teachers, students, yeah. Okay. And people are there from Goa University also, Goa and from Maharashtra also. Okay. So that's fine. Thank you very much indeed. I'm very delighted to be interacting with this young mind of this nation, particularly who will be the part of the nation building. First of all, let me thanks to the organizer, the Krutadnyata Foundation and his team. Particularly, I wanted to thanks to Dr. Pradnya Lokhande ma'am, who has given me this opportunity to interact with you people. So today's session will be focusing on the exactly what you're going to do after 10th and 12th standard. So most of the time we get confused, particularly even parents too. So from today's interaction, we can say you will get a little bit idea what your kids or your wards must select the particular stream, or it doesn't matter at all whether she or he is in the arts, commerce, or science. So with this, I would like to share my presentation as well, so that will give you the some of the highlights. So before beginning to the talk, let me just start with the story that you know there was a one kingdom. In the tradition was like that any king who rule that particular kingdom have a chance to rule for 5 years. And once we do rule the particular kingdom for 5 years, we do forget what to do exactly, and we do take the advantage, and that advantage is what the enjoyment, pleasure, and all sort of things. But the tradition was like that after 5 years, that king should be sent to the jungle where there were very dangerous animals, and that would be the last day of his life. So that was the tradition of that particular kingdom. And day by day, that many peoples have been ruled, but one point comes that people understand that nobody is ready to be a king. The reason behind that, he knows that after 5 years he has to surrender his life.
तो गांव की जो प्रजा है वो सोच में पड़ गई है, बिकॉज आई विल यूज बोथ द लैंग्वेज टू गेट द प्रॉपर कंटेंट्स. People thought there should be a right person to guide us as a king. So people thought there is a one fellow who is very clever and good to rule to this particular kingdom. When the story was told to him, that he thought 1 minute, okay, what is that? After 5 years, I have to die. And he was clever and he took a challenge that, okay, I will be your king for 5 years. And then we'll think what next. After he became a king, on the third day only, he had been to that place where after 5 years he has to go. यानी 5 साल के बाद मुझे वहां जाना है, वो पहले ही देख लिया उसने वो प्लेस, और सोचा कि ये तो बड़ा जंगल है, घना जंगल है, बड़े बड़े डेंजरस एनिमल्स है. And then what to adjust or how to control that particular area, like after about 5 years I had to be here just to surrender my life. तो उसने सोचा कि अगर मैं एक एक साल में अगर इसमें अगर अच्छी तरह से इसकी देखभाल करता रहूंगा, या इसको अगर मॉडिफाई करूंगा, या इसको अगर डेवलप करूंगा, what he did, he every year plan, first year, second year, third year and fifth year. In 5 years, he cultivated that complete forest or with the dangerous animal into a beautiful place for a living person. He make a land, particularly road, beautiful land for the cultivations, construction for the houses and everything that doesn't remain as a forest. So he completed the 5 years, and before the 5 years, he told to his people that I wanted to go to that place where you are going to send me after 5 years. तो लोग सोचने पड़े हैं कि भाई 5 साल के बाद जो है हर कोई वहां जाने के लिए डरता है, and this fellow is eager to go there. What exactly this? तो हुआ ऐसे कि वो दिन आ गया जिस दिन उसको जाना था. तो 5 years completed and he has sent to this particular place, और हाथी घोड़ों के साथ उसको जो है रवाना कर दिया. And he was very happy. The people were amazed कि ये इतना happy कैसे है. He is so happy and eager to go there. The bottom of the story is that कि हम जितने भी एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, 11th है या 12th में है या 10th में है, they all are in this particular period. That is what we have a specific period. और वो पीरियड कितने साल का है हमारे पास? If you are in a 12th standard, 12 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे. At the age of like 16 you have started your career, and you will focus or get the beautiful fruits of your career in the age of like maybe 22 or 21 or 23rd or 24 maximum. So that means you have 5 to 6 years of a very perfect timing. So if you cultivate that particular time, 5 to 6 year time in a proper way, as the king has did, he worked very hard, he planned it, and that very rough place with the big animals, dangerous animals, he make it a beautiful place to be live there. तो हर कोई इंसान आज के डेट में जो भी 10th में है या 12th में है, ये सोच में लगता है कि मेरी लाइफ 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ऐसी होगी. वो दूसरे की तरफ देखता है कि ये मेरा बाजू वाला जो है, he has done graduation, he has done like post graduation, and now he got a good job and he built his kingdom. That job मिलना या to set the career, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसने उसका किंगडम जो है सेटअप कर दिया, and he will live his life very beautifully. Life is very beautiful, I'm telling you. हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए, और ब्यूटीफुल होनी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? जेब में पैसा चाहिए. जेब में पैसा कब आएगा? जब आपके पास अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस या अच्छी कोई तो भी रेपुटेड थिंग हो जिसके बदौलत आपके जेब में पैसा है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक अ किंग, दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड विद द प्लानिंग. ऐसा नहीं कि भाई हम काम कर रहे हैं और उसका जो है आउटपुट जो है नहीं आ रहा है. सो यू हैव टू प्लान इन अ सिस्टमैटिक वे. जो भी करियर हम प्लान करते हैं, whether it is in India or in abroad, you have to plan, you have to be a statistical person, that you have to map it. Like, you know, whenever you want to go to any place, कहीं पे भी जाना होता है अभी कार से, तो हम पहले जीपीएस डाल देते हैं कि चेक कर देते हैं कि भाई ट्रैफिक तो नहीं कहीं पे,
या शॉर्टकट कौन सा रास्ता है, शॉर्टकट और ट्रैफिक नहीं है और हम टाइम पे पहुंच जाएंगे. सो दिस इज व्हाट आवर ऑलवेज टारगेट टू रीच टू द डेस्टिनेशन. अगर हमें किसी एक घंटे का ट्रैवल करने के लिए अगर हमें प्लानिंग लगती है, हम जीपीएस डालते हैं, सब कुछ चेक करने के बाद वहां पे जाते हैं, तो हमारी लाइफ जो है ये तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारी लाइफ की, कि एट द एज ऑफ लाइक मे बी 16, अगर आप 10th में हो या 18, अगर आप 12th में हो, तो आपने आपका जीपीएस जो है सेटअप किया होगा आपने आपका लाइफ कि मुझे क्या करना है. जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है चक्रों में आ जाते हैं कि भाई क्या करना है लाइफ एग्जैक्टली, क्या करना है. जैसे कि हम 10th में हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है. 10th is what like just the foundation of all the next careers. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10th से पहले ही अगर तुम अगर फाउंडेशन 8th 9th और 10th में अगर तुम्हारा अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, आई एम श्योर कि 12th में तुम्हारा करियर जो है ऑलमोस्ट डिसाइड होता है कि मुझे क्या करना है. बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि देयर इज ऑलवेज द फोर्स फ्रॉम द फैमिली कि ये बाजू वाला जो है ये डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर की कर रहा है, तू भी डॉक्टर की कर. हालांकि द एबिलिटी वो बंदे का जो है वो डॉक्टर बनने का नहीं रहता है, उसको इंजीनियर बनने का रहता है. लेकिन माँ बाप बोलते हैं या रिलेटिव्स बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है. सो दैट एबिलिटी एंड द इंटरेस्ट, दीज आर द टू अपोजिट थिंग्स. यू हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट अ प्रॉपर वे. हमें जो है फ्लो के साथ नहीं जाना है कि ये जो है बंदा ये कर रहा है इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ. चीज करो, whether it is arts, commerce or science field, you have to follow the 3 Ds of your life. I'm telling you 3 Ds. अगर आप परफेक्टली अगर 3D फॉलो करते हैं, 3D का मतलब होता है, मैंने मेरे लाइफ में खुद ये 3D जो है absolutely I'm telling you tested, and this is 100% result. Madam has introduced me that I have reached to the Oxford University, the world #1 university. I did my PhD degree, that is the highest degree in the education field, highest degree, and into the toppest particularly university, that is in the Oxford University. अभी आप सोच सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड में जाने के लिए हमें जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वे से जाना पड़ेगा. इट्स नॉट सो इजी कि मैंने जो है बस बैग भर दिया और मेरे पास पैसा है एंड देन आई विल पैक एंड आई विल गो टू द अब्रॉड. इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आपके पास पैसा भी है तो वो काम का नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर फिट फॉर दैट. बहुत सारी कंपटीशन से, बहुत सारे टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका बेस जो होता है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, उसका जो बेस होता है, उसका बेस का कंस्ट्रक्शन जो होता है उतना ही हो जाता है, जितने फ्लोर ऊपर जाते हैं उतने ही नीचे उसका कंक्रीट बना हुआ रहता है. तभी जाके उसका जो है लाइफ जो होता है स्ट्रांग होता है. अदरवाइज अगर हमने सोचा है कि क्या बेस में नीचे क्या बांधने का है, जस्ट ऊपर ऊपर चले जाते हैं फ्लोर वाइज, तो ये बिल्डिंग जो है कभी भी हमारी नीचे आ सकती है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रांग बेस. तो बेस के लिए हमें, मैं तो ये बोलूंगा कि कोई अगर पेरेंट्स यहाँ पे मुझे सुन रहा है और उसका अगर बेटा बेटी अगर 8th स्टैंडर्ड में है या 9th में है, यू हैव टू फोकस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड ओनली. जैसे कि इवन आई वुड से कि 10th में भी है बच्चा, अभी आज के डेट में 10th में एडमिशन ले लिया है और उसको जो है आगे करियर सिलेक्ट करना है. डोंट गेट कंफ्यूज होना नहीं है हमें. क्यों कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें पता है कि हमारे बेटे का इंटरेस्ट कहाँ पे है या बेटी का इंटरेस्ट कहाँ पे है. बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जो है, अभी समझो 10th का इस साल का जो रिजल्ट आएगा, इट इज लाइक प्रोमोटेड दैट यू हैव टू कंसीडर टू द 9th ग्रेड. कि 9th ग्रेड का जो भी उसका जो ग्रेडिंग आया है स्कूल से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ. कि अगर मेरे बेटे का अगर आर्ट्स में अगर अच्छा मार्क्स आया है या कॉमर्स में अगर अच्छा मार्क्स आया है, अगर साइंस में अच्छा मार्क्स आया है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो आर्ट्स में जाए या कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए. लेट ही डिसाइड कि उसका इंटरेस्ट किस में है. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आई विल लेट यू नो माय स्टोरी, कि मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था लेकिन मुझे पता ही नहीं था. बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ नॉलेज, you
एंड अप विद द डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो इसके लिए हमें जो है लोगों से बातें करना है, लोगों से, वही लोगों से कि जो जानकार है उस फील्ड में। जैसे कि मैं ऑलवेज बताता हूँ कि अगर हमारे बेटा बेटी का अगर करियर डिसाइड करना है तो उससे रिलेटेड जो मेंटर्स होते हैं, पर्टिकुलरली द फर्स्ट मेंटर होता है उसका टीचर, कि वो जो जो 9th में या 10th में उसको पढ़ा रहा है या क्लासेस में पढ़ा रहा है, यू शुड कंसल्ट विद दिस पर्टिकुलर फेलोज दैट टीचर्स, कि मेरे बेटे का और बेटे का इंटरेस्ट किधर आता है, बिकॉज समटाइम्स सी मे नॉट बी लाइक ओपन विथ यू दैट सी विल डिस्कस कि मुझे ये करना है वो करना है, या हो सकता है कभी कभी वो रॉन्ग भी बता सकती है कि बिकॉज ऑफ जस्ट फैंसी वे, कि कभी कभी होता है ऐसे कि मेरे नियर बाय या मेरे कजन ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने कोई एक फील्ड में करियर बनाया है, तो वो सोच सकता है कि मेरे घर में ऐसे भी सोचेंगे कि मैंने जो है लोअर फील्ड जो है सिलेक्ट किया और मेरे घर में तो कोई तो हायर फील्ड वाला है। सो दैट वे, दैट पर्टिकुलर कंफ्यूजन इज विद द किड्स। तो हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता करनी है, हमारे जो मेंटर्स होते हैं यानी बच्चों के मेंटर्स जो होते हैं, जो टीचर जो होते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये मेरे बेटे का किस में ज्यादा यानी फोकस है स्टडी में, किस में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी वो करियर किस में बना सकती है। सो दिस इज वन थिंग। अभी 10th के बाद क्या होता है कि नॉर्मली वी डू एंड अप विद व्हाट आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशंस। ओके, लेकिन ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, ब्रॉडली वी कैन से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर मैं समझो साइंस में चला जाता हूँ 10वीं के बाद, तो मेरा लाइन एक फिक्स हो जाता है कि मुझे जो है इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, पैरामेडिकल कोर्सेज या कोर साइंसेस जो होते हैं उसमें मैं मेरा करियर बना सकता हूँ। या कॉमर्स में अगर है तो तुम्हारा जो रूटीन कोर्सेस है 12th कॉमर्स में करेंगे आप, देन बीकॉम एंड देन बीबीए, सीए रिलेटेड, बीएमएस सॉर्ट ऑफ कोर्सेज जो है आगे आपको मिलने वाले हैं। आर्ट्स में जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लॉ में भी जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, इवन होटल मैनेजमेंट, देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। वंस यू डिफाइन 10th के बाद, 10th के बाद अगर मैंने आर्ट्स में लिया तो मेरा लाइन फिक्स हो गया। आर्ट्स वाला बंदा जो है, अगर उसने सोचा भी है, किसी ने बताया कि मुझे साइंस में जाना है, आर्ट्स करने के बाद वो साइंस में जा नहीं सकता है, या आर्ट्स करने के बाद वो कॉमर्स में भी नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ सम सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन साइंस वाला बंदा जो है, साइंस करने के बाद वो कॉमर्स में भी जा सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता है, ह्यूमैनिटीज में भी जा सकता है। सो देयर इज अ फ्लिप टू गो टू द एनी सब्जेक्ट्स। तो अभी हमारे पास अगर समझो कोई यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट है कि मुझे 10th के बाद ही करियर करना है, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो देयर आर दी करियर्स। आप जो है सम वोकेशनल कोर्सेज होते हैं लाइक पॉलिटेक्निक, आईटीआई, देन पैरामेडिकल कोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज। यह ये जो 3 साल का, 2 साल का, या 6 महीने का या 3 साल का कोर्स जो है, ये करके जो है तुम्हारा करियर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन I don't encourage that you should go directly. There are these, it's not very very interesting, लेकिन हमें जो है कन्वेंशनल वे से थिंकिंग नहीं करना है। व्हाट डज इट मीन कन्वेंशनल वे? कि हम हमारे जो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी जो डॉक्टर हूँ। सो दिस इज व्हाट द पैराडॉक्स, कि नहीं मैं जो हूँ तू भी वही हो। लेकिन अगर बेटा अगर बेटी अगर चाहती है कि कुछ अलग फील्ड में जाए या आर्ट्स में जाए, इट इज नॉट लाइक कि आर्ट्स फील्ड जो है कुछ करियर नहीं बनाता है। देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द आर्ट्स आल्सो। आर्ट्स में अगर तुम अच्छे अच्छे कॉलेज में अगर तुम्हारा एडमिशन के लिए स्कोर देखेंगे तो इट्स वेरी टॉप रैंकिंग, तो करियर भी बहुत सारे हैं। लेकिन वी हैव टू बी इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर फील्ड, वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, जैसे कि होता है कि हमें पता है कि हम बच्चों को बोलते हैं हर दिन कि सुबह उठो, सुबह जागो पढ़ाई के लिए। सुबह इन द सेंस कि पढ़ाई करना है, जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock और 6 o'clock। तो हमारा बेटा या बेटी जो है नेवर एवर वेकअप अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर अलार्म। वो जो है यूजिंग भी करेगा बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट कहाँ से आता है? इंटरेस्ट कहाँ से आता है? जब वो अंदर से उसको फील होता है कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे कि एग्जांपल है कि किसी दिन हम सोचते हैं कि चलो हम
आउटिंग के लिए जाते हैं, बाहर किसी ट्रिप के लिए जाते हैं या हॉलीडेज के लिए जाते हैं, तो बच्चे का तुम देखो एटीट्यूड क्या होता है, वो सोता नहीं है। वो जो है अलार्म लगाने से पहले 1-2 घंटे ही पहले जाग जाता है, बिकॉज ही इज टू मच फैसिनेट कि नहीं मुझे बाहर जाना है, घूमने के लिए जाना, ये देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव दैट पैशन। जब तक ये पैशन नहीं होता, कि जैसे कि मैंने 12th में डिसाइड किया है कि मेरे को जो है कॉमर्स में जाना है और सीए बनना है, या आर्ट्स में जाना है और मुझे जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके एक पर्टिकुलर स्टेट को या पर्टिकुलर जिले को जो है रूल करना है, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। अगर उसके दिमाग में एक फिट हो जाता है कि मुझे इस डिग्री के बाद, इस एजुकेशन के बाद ये करना है, अगर वो कंप्लीटली पैशनेट है, उसके पास अगर 3D है, कंप्लीट डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय किया उसने कि नहीं मुझे जो है 12 के बाद आर्ट्स लिया मैंने, ओके, आर्ट्स लेने के बाद जो है मैं जो है फाइन आर्ट्स में मेरा करियर बनाऊंगा, या कॉमर्स लिया मुझे सीए बनना है। अगर उसने डिसाइड कर दिया, डिटरमाइन किया कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना है विथ हिज इंटरेस्ट, नॉट फोर्स बाय पेरेंट्स। अगर उसके खुद के मन ने सोचा कि नहीं मुझे अभी इंजीनियर बनना है, या मुझे अगर डॉक्टर बनना है, तो अगर उसके अंदर से आवाज आ जाती है कि मुझे यही बनना है, देन आई एम श्योर कि उसको नींद नहीं आएगी। जैसे हॉलीडे में जाते हैं तो नींद नहीं आती हमें, वैसे ही उसको लगेगा कि हर दिन जो है अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर टाइम पे जो है वो जाग जाएगा, एंड ही विल स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। तो पहला डिटर्मिनेशन होना चाहिए 3D का। तीसरा हो जाता है कि डेडिकेशन, पूरा का पूरा हमें जो है वो समर्पित होना है उसके लिए, कि मुझे यही करना है, मेरे लाइफ का करियर। मेरे दीवार पे मैंने लिख दिया है कि मैं जो है 4 साल के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, या जो भी मैं एक जिले का जो है एक प्रमुख ये बनने वाला हूँ। अगर दीवार पे लिख दिया उसने, तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू वो हर दिन देख के जो है उसको नींद नहीं आएगी। दूसरा होता है डिवोशन। ये 3D जो है इंपॉर्टेंट होती है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, एकनिष्ठ होके। अभी अगर उसको बोलेंगे कि चलो मूवी के लिए बाहर जाना है, तो वो बोलना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे जो है आज का इतना पढ़ाई कंप्लीट करना है, तभी जाके जो मैं आगे का दूसरा काम में अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि मैंने बोला है कि राजा को 5 साल मिले थे, 5 साल में उसने हर साल में प्लानिंग किया। प्लानिंग के बाद उसको पता चला है कि मुझे मरना है 5 साल के बाद। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मरना है, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास जो भी ये 5 साल है या 4 साल है या 6 साल है, ये 6 साल में अगर हमने कुछ भी नहीं किया है, एज ए स्टूडेंट आई एम कंसिडर एज ए किंग। अगर मैं स्टूडेंट को अगर किंग के एक जगह पे रखता हूँ, अगर मैंने ये सालों में अगर कुछ नहीं किया, तो मेरे सामने जो है वो जंगल है पड़ा हुआ। जिस जंगल में मुझे जाके जो है मुझे छोड़ना ही है। माँ बाप जो है कब तक मेरा साथ देंगे? जब तक मैं ग्रेजुएशन कर न लेता हूँ, तब तक मेरा सपोर्ट है, तब तक मुझे जो है राजा की लाइफ जीनी है। अगर मैंने खुद प्लानिंग नहीं किया कि हर साल में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या डिग्री लेना है, कैसे वो डिग्री क्वालिटी वाइज डिग्री लेना है, क्वालिटी डिग्री, डिग्री तो सभी लेते हैं। देयर आर करोड्स ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया, करोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी है यू कैन इमेजिन। उसमें से जो है 8% या 7% जो है ग्रेजुएट्स, उनको ही अच्छा जॉब मिलता है। रेस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स दे डम्प एज ए फुल ऑफ कंपटीशन। और यहाँ पे जो है हमारी सोच चेंज हो जाती है कि देखो हमारे घर में जो है, घर के बाजू में जो है ग्रेजुएट पड़ा हुआ है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? नेवर एवर अंडर एस्टिमेट yourself or never ever compare with the others. Okay, you have to understand your own potential. खुद में वो पोटेंशियल जो है वो चेक करना है हमें। अगर वो पोटेंशियल है, रहता है, हर किसी में रहता है पोटेंशियल। ओनली क्या होता है कि वो पोटेंशियल तुम में है, ये कोई तो भी बताना चाहिए। और वो बताने का काम कौन करता है? एक तो तुम्हारे माँ बाप करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप जो बोलते हैं हमें, वो थोड़ी देर हमें हर दिन में वो बम्बार्डिंग होता है, तो हमें वो पसंद नहीं होता है कि माँ बाप हर दिन यही बात बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, तू कुछ कर सकता है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारे टीचर के साथ, मेंटर के साथ अगर अच्छे रिलेशंस है, एंड इफ ही और सी इज गाइडिंग यू राइट वे, देन यू हैव टू फॉलो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेंटरिंग, आज का जो कृतज्ञ फाउंडेशन ने जो एक प्रोग्राम लिया है, इट इज अ वन experiment they have done that through that particular organization foundations, they are trying to motivate the young minds of this particular webinar। अगर किसको भी अगर समझो पसंद आया, या जिसको भी अच्छा लगा कि भाई नहीं मुझे लाइफ में ये करना है, सो दैट इज द व्हाट सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशंस।
सो फ्रॉम दिस वेबिनार, ऐसा नहीं कि सभी के सभी लोग जो है अभी मैंने जो बोला है वही फॉलो करेंगे. दे हैव देयर ओन माइंडसेट एंड दे विल फॉलो देयर डिफरेंट दैट रूल्स एंड द मॉडल्स. बट अगर मेरे मॉडल में से अगर कुछ भी थोड़ी चीज भी अगर उसको स्पार्क करती है या मोटिवेट करती है, तो दैट दैट क्रेडिट गोज टू द Krudatna Foundations. So what I'm trying to emphasize over here, that कि जो भी conventional thinking है, paradox thinking है, did not to impose on your kids or your wards. Let he or she decide his own way. जैसे कि मैंने बोला है कि अगर किसी में अगर कुछ वर्च्यू है, कुछ अच्छे गुण है, तो let he or she do according to his style. जैसे कि कभी किसी को होता है कि सिंगिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम जो है उसको कभी मोटिवेट नहीं करते कि भाई गो हेड फॉर दैट पर्टिकुलर हॉबी और पर्टिकुलर दैट स्पोर्ट्स. लेकिन जब वो आगे जाके अगर उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग करता है तो पूरी दुनिया उसका नाम लेती है. लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ सचिन. We know that he is a 12th pass only, but world knows him. So some point the extraordinary virtues will be appreciated lots. तो ऐसा नहीं कि जितने भी अभी ये पढ़ रहे हैं, तो yes, this is good that education is for building a good human being with all virtues. लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई अलग पैशन है, you keep it that passion and go ahead with that particular passion. जैसे कि हमारे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इस फील्ड में अगर जिस जगह पे आपको लगता है कि मुझे डिग्री लेना है इसमें, लेकिन पूरी ताकत से, पूरी पूरी फोकस से अगर तुम 3 साल 4 साल 5 साल अगर फोकस करते हो, आई एम श्योर कि कोई भी डिग्री आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से आपको जो है आपको करियर जो है टॉप से टॉप बना सकती है. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक ईगल रहता है. ईगल सबको पता है, बहुत दूर दूर आकाश तक वो फ्लाई करता है, बिकॉज ही हैज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल. उसकी जो विंग्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी जो टारगेट शूट करने की जो उसकी जो कैपेसिटी होती है इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन होता है ऐसे कि वो जो ईगल होता है एक दिन अपने खुद के एग्स होते हैं, वो एक खुराड़ा जो होता है, खुराड़ा इन द सेंस कि जहाँ पे मुर्गी अपना अंडा देती है, तो वहां पे वो अपने एग्स जो है छोड़ देता है. और मुर्गी को लगता है कि ये जो एग्स है, ये एग्स मेरे खुद के ही है, तो वो उसको सब एग्स को एक साथ इंक्यूबेट कर देती है और उस सब अंडों से जो है चिकन बाहर निकलती है. और मुर्गी को लगता है कि जितने भी चिकन है वो मेरे बच्चे हैं. तो हमने जो है मुर्गी को देखा है, चिकन को देखा है, उसके पीछे पीछे जो है चिकन ऑलवेज फॉलो करते हैं कि जो चिकन हेन करेगी वो चिकन करते हैं, उसके जो बच्चे जो है वो फॉलो. लेकिन हाँ चिंची. लेकिन लाइफ में ऐसा भी होता है कि देखो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्यूरियस होते हैं. ऑलवेज दे आस्क द क्वेश्चंस टू द टीचर कि इसके बाद क्या है, ये क्यों हो रहा है. मींस दैट इज why is very important. Always you have to ask the questions. Even for the in the classes also, जब भी तुम क्लास में जाते हो तो जो भी टीचर पढ़ाती है, कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि ये टीचर ने जो है पढ़ाया हुआ रॉन्ग हो सकता है, तो यू शुड आस्क द क्वेश्चन कि मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यू शुड बी ओपन माइंडेड. जो भी लगता है whether it is wrong or right, need not to bother, but you have to ask the question. You have to follow that habit. You have to be talkative with the those who are guiding you, yeah, as a teacher or parent. So unless and until you are not asked the questions, you will not understand the many things. तो चिकन का जो हैबिट होता है कि बच्चों को जो है वो बाहर लेके जाती है, चिकन जैसी करती है, जैसा खाती है वैसे ही वो जो चिकन जो बच्चे होते हैं, हेन और चिकन. ओके, तो जो मुर्गी जो है खाना खाती है, जहाँ पे खाती है ये बच्चे भी वहां पे चले जाते हैं. लेकिन उसमें से जो 2 ईगल के जो बच्चे थे, दे आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट देयर पोटेंशियल. तो ऑलवेज जो है वो हेन को जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन वी फ्लाई, कैन वी डू लाइक दिस, कैन वी डू लाइक दैट. तो हेन बोलती है कि ना ना ना, वी डोंट डू दैट, वी डोंट डू दैट. तो एक दिन वैसे ही वो क्यूरियस होके आकाश में देखते हैं, तो उनको जो है ईगल पक्षी दिखता है और वो बहुत छलांग लगा रहा होता है. लेकिन होता क्या है कि बच्चे पूछते हैं हेन को कि कैन वी फ्लाई लाइक दैट बिग बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई. तो वो हेन क्या बोलती है वो बच्चों को कि बेटा हम फ्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ जंप कर सकते हैं.
अगर hen ने अगर बोला होता yes we can fly, you have that potential, the moment that chicken in the form of the eagle babies would have flied. लेकिन उनको पता ही नहीं था उनका पोटेंशियल कि हम आकाश में जो है छलांग लगा सकते हैं। तो लाइफ में ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हमें पता ही नहीं होता हमारा पोटेंशियल क्या है। अभी ये पोटेंशियल कैसे हम पता करें, तो ये पोटेंशियल बताने का काम जो हमारे मेंटर बताते हैं आपको। मेंटर कौन होते हैं? आपके टीचर्स। ऑलवेज फॉलो द टीचर्स। अगर टीचर अगर बताते हैं तो दे विल टेल यू द राइट थिंग्स बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द स्टेजेस। अभी अगर मैं मेरी खुद की कहानी बताता हूँ कि मैंने बोला है कि आई हैव रीच्ड टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी। आपने सोचा होगा कि ये बहुत ही ब्रिलियंट होगा बंदा, वर्ल्ड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में ये बंदा जा चुका है, ये तो बहुत ब्रिलियंट हो सकता है। ओके और यह हो सकता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा। अगर ऑक्सफोर्ड में अगर पीएचडी करना है आपको, तो मेरा पीएचडी का खर्चा फीस था इन करोड़, और लिविंग एक्सपेंसेस मुझे जो मिला था दैट वाज लाइक अगेन इन लैक्स 4 साल तक। ओके तो इस दोनों चीजों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं ब्रिलियंट भी नहीं था, मैं होशियार भी नहीं था। दो मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि आई एम दी मेरिट इन द यूनिवर्सिटी, यस दैट इज ट्रू। लेकिन इफ यू गो बैक टू दी earlier classes like you are in 10th and 12th, I was so poor there. Sir, I belong to a very small village in at particularly Akola district, very small village, जहाँ पे जो है 10वीं तक का मराठी मीडियम में एजुकेशन होता है। 10वीं तक का मराठी मीडियम में एजुकेशन होता है और हमें इंग्लिश जो था सब्जेक्ट ये 5th स्टैंडर्ड में आया था एंड दैट बिकम्स द वन ऑफ द हॉरिफाइड सब्जेक्ट फॉर द स्टडी, क्योंकि हमें जो है ऑल ऑफ अ सडन इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो गया 5वीं के बाद, तो हर कोई बंदा जो है डर जाता था और वो इंग्लिश को जो है पढ़ता ही नहीं था। तो समहाउ हम जो है एक स्टैंडर्ड लेके जो है ऐसे तो भी ग्रेस पास होके, एंड माय एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ग्रेस पास कर करके जो है 10th तक गया। एंड 10th के बाद मुझे पता नहीं था कि 11th करना होता है, कि उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है। यू नो टुडे यू ऑल नो, यहाँ आज ये वेबिनार जो भी सुन रहा है उसको सब पता है कि 10th के बाद जो है क्या करना होता है, 12th के बाद जो है क्या करना होता है। आई एम द स्टूडेंट वेयर आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग कि 10th के बाद 11 आता है, लेकिन 11th में कॉमर्स आर्ट साइंस ये होता है। आज मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पे कि ये कोर्सेज होते हैं, आपको सबको पता है, लेकिन दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट कि मुझे जो है ये भी पता नहीं था। somehow I passed 10th and one of my friend asked, oh, I had taken the admission in the 11th standard in science, animal science particularly course। तो मुझे पता नहीं था कि एनिमल साइंस क्या होता है, साइंस होता है या आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। दो आई वाज लाइकिंग द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन द लैक ऑफ नॉलेज, द इलिटरेसी, मेरे फैमिली में पहला ग्रेजुएट मैं हूँ, कुछ भी पता नहीं था। तभी भी सब कुछ जान के आई केम टू नो, ऐसा नहीं कि मैं अभी गांव में 10वीं तक रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। पहली बार मैं तहसील प्लेस गया, दैट इज अ तालुका प्लेस बोलते हैं उसको, एंड आई कंप्लीटेड माय 11th 12th वेयर 11 पूरा का पूरा साल मुझे इंग्लिश में एक वर्ड भी नहीं समझ में आता था। कुछ रट्टा मार मार के जो है 12th पास हो चुका हूं मैं विद द 55% मार्क्स। कैन इमेजिन 55% मार्क्स लेके मुझे आज यहाँ पे बताने के लिए गर्व फील होता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसको ये 10th के बाद 11 में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं ये पता नहीं। सबको पता है, पेरेंट्स आर क्वाइट क्वालिफाइड, दे नो एवरीथिंग कि क्या मेरा बच्चा करने वाला है, एवरीबडी नोज। अभी देखो कि मेरी अगर स्टोरी, मुझे कुछ भी पता नहीं था 11th 12th में, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था, somehow I passed and then I landed कन्वेंशनल डिग्री, दैट इज अ बीएससी। जिस डिग्री को आज की डेट में बोलते हैं कि दिस इज अ कन्वेंशनल डिग्री, ये तो कोई भी 3 साल में करके जो है डिग्री ले सकता है। इसलिए द मोरल ऑफ दिस सेइंग इज दैट कोई भी डिग्री अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट लेते, श्योर यू विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बेस्ट आई एम टेलिंग यू, कुछ भी करो लेकिन पूरी लगन से करो, पूरी ताकत से करो कि ये मुझे करना है। जैसे कि मैंने
ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में जब मैं गया फर्स्ट ईयर में तो मुझे समझने लगा इंग्लिश, दैट इज अ केमिस्ट्री या बॉटनी या फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट्स है, दैट इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ लर्निंग की समझ में आ रहा है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अगर 10वीं का बच्चा है या 12th का बच्चा है कि उसको क्लासेस में जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं they don't understand the contents of this that particular lectures. So that was my pre stage कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे समझ में आया था। The reason behind I'm telling you the story that we should be focused to the particular subject. जब मैं कंसाइज था कि नहीं मुझे अभी डिग्री करना है, इसके बाद जो है मुझे आगे मेरे कुछ मेडिकल का तो कुछ चांस ही नहीं है, ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग का भी कुछ चांस नहीं है, परसेंटेज भी कुछ नहीं है। So that was the like one of the hurdle. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में फेल्यूर आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है एंड देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड और हम जो है सोचते हैं कि क्या करने का अभी पढ़ाई में। बट वेरेवर यू लैंडेड अप, कोई भी डिग्री हो, बीए बीकॉम बीएससी या बी हो या एमबीबीएस हो या इंजीनियरिंग बीटेक हो, एनी डिग्री आई एम टेलिंग यू, अगर तुम सच्चे दिल से अगर पढ़ाई करते हो तो यू विल बी द एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम द सक्सेस। और दूसरी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे लाइफ में कंपटीशन नहीं होती है। व्हाट इज कंपटीशन मींस? कंपटीशन किस में होती है हमारे पास मालूम है? कि मेरे पास मोबाइल है, ओके, आज की डेट में 10वीं वाला स्टूडेंट है या 12वीं वाला स्टूडेंट है, मोबाइल मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ ऑल ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टफ। तो ये कंपटीशन होता है कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये फोन है, वो फोन है। दिस इज व्हाट द कंपटीशन वी हैव। सम पॉइंट वी मे हैव द कंपटीशन कि नहीं मेरे पास जो है, मेरे फादर ने जो है मेरे को ये ऐसा बाइक दिया है, वैसा बाइक दिया है। सो दिस टाइप ऑफ कंपटीशंस वी नॉर्मली विल डू। बट मुझे ऐसा लगता है कि we have to compete with our counter partner, we have to understand, we have to recognize our counter partner कि मुझे जो है एक पर्टिकुलर मुकाम पे जाना है तो मुझे जो है इसके आगे जाना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर समझो किसी ने यहाँ पे लाइन खींच दी, ऐसी लाइन बोल दी यहाँ पे ऐसे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक लाइन खींच दी यहाँ पे ऐसे, ओके ये लाइन है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि ये लाइन जो है ये स्मॉल है या वेरी बिग है, तो आपके पास आंसर नहीं है। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, इसका जो है जवाब कोई भी नहीं है। जब तक मैं एक काउंटर लाइन इसके साथ में नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ तब तक मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कि दिस इज स्मॉल और शॉर्टर देन दिस वन और दिस इज लॉन्गर देन दिस वन। तो हमारे लाइफ में क्या चाहिए? वी नीड टू हैव अ कॉम्पिटिटर। तो ये कॉम्पिटिटर को कैसे पहचानने का होता है? सो कॉम्पिटिटर इज वेरी इजी टू डिफाइन। जैसे कि अभी 10th वाला बच्चा है या 12th वाला बच्चा है, जो भी क्लास में पढ़ता है, कोई ना कोई तो टॉप रहता है। अगर तुम खुद टॉप हो देन यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर टॉपर्स कि अदर कॉलेज के या जो भी है तुम्हारे इसमें, यू हैव टू सिलेक्ट योर काउंटर। ये so that you have to select. This is the first the milestone in the success story of many people, I'm telling you, including my story also, कि अगर तुम्हारे लाइफ में अगर तुम लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन के आगे वाली लाइन जो है बड़ी लाइन, ये कैसे मैं बनाऊंगा? दैट इज व्हाट द कंपटीशन। अभी कंपटीशन कैसे करें? जैसे कि आई लेट यू नो कि जब मैंने बोला है कि फर्स्ट ईयर में आई अंडरस्टैंड कि पढ़ाई जो है कैसे करते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। जब तक सब्जेक्ट तुम्हारा अंडरस्टैंड नहीं होता है यू विल नॉट गेट द इंटरेस्ट। नहीं तो आप क्या होते हैं, बोर हो जाते हो। एक तास पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मन नहीं लगता है एंड देन यू फील कि वो छोड़ दो इसको, क्या ये करने का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेरी वेल। जैसे कि होता है ना, हम स्टोरी मूवी देखते हैं, मूवी देखने के लिए 3 घंटे का मूवी रहता है एंड वी आर 100% इन द फ्लो ऑफ मूवी। 100% हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है। अगर बाजू वाला अगर चक्कर आके गिर भी जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। अगर या हमारे बाजू में कोई स्नेक आके अगर बैठ जाता है तो हमें पता नहीं चलता है, बिकॉज वी आर फुल्ली फोकस, वी आर द पार्ट ऑफ द मूवी। कैरेक्टर में घुस जाते हैं हम। अगर कोई सॉन्ग आ जाता है या कोई एक्शन आ जाता है तो हमारे बॉडी में जो है वो एक्शन जो है ऑटोमेटिक आ जाती है, बिकॉज वी आर विद द फ्लो, वी आर 100% इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो पढ़ाई में क्या होता है कि हम दुनिया का सोचते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बाजू में क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी ऑल दैट थिंकिंग, वी
वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग, ऐसा समझ लेते हैं, एंड देन वी डाइवर्टेड। और पढ़ाई में जो है फोकस हमारा 10% रहता है, जो मूवी में 100% रहता है, पढ़ाई में हम 10% रहते हैं। और उसमें भी अगर समझ में नहीं आता है वो कंटेंट्स, तो हम जो है उसको छोड़ देते हैं, एंड वी गेट फेड अप। तो आई वुड से कि जब तक वो कंटेंट तुमको समझ में नहीं आता है, यू जस्ट बी आफ्टर दैट। कैसे यार आफ्टर दैट कैसे होना है कि हमारे कॉलेज में हमने ये लेक्चर अटेंड किया है, मुझे समझ में नहीं आया, we have now like beautiful virtual media like this Google and YouTube. Go to the YouTube, just type the same contents, you will get some of the videos or some of the contents जिसमें जो है clarity मिलेगी, and you can interest the you can develop your interest, so that way you can mold your how to build your interest in that particular field. दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने बोला एक competition is completely will take you the far away in the field of your success, I'm telling you. जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरी, कि जब मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में था, तो आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन बॉटनी, zoology, all subjects, because I understand, I get that grip. क्योंकि 11th 12th में जो है हमने सब रट्टा मार दिया था, पढ़ाई में जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब समझ में आया देन इंटरेस्ट डेवलप। तो बहुत सारे आंसर जो है हम क्लास में देते थे, एंड देन व्हाट आई स्टार्ट कि आई स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, सो आई थॉट कि वाओ, आई एम द ओनली पर्सन इन द क्लास दैट आई कैन गिव द आंसर, देयर इज नो एनी सिंगल पर्सन दैट हु इज नॉट गिविंग द आंसर। तो ये क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बन जाता है कि हमारा एप्रिसिएशन होता है क्लास में। जब टीचर अप्रिशिएट करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वी शुड आंसर मोर। तो हर दिन जो है हम पढ़ाई करके जाते थे। सो दैट इज व्हाट द कल्टीवेशन, हाउ वी स्टार्ट द गुड हैबिट्स, पर्टिकुलरली इन द कल्टीवेशंस। तो हम जो है पढ़ के जाते थे, एंड अगर तुम सेम टॉपिक को पहले पढ़ लेते हो और कोई आपको समझा रहा हो, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड, and the question asked on that particular topic, you will be able to answer it very nicely, because you understand, in one stroke you understand the content, and then you become a hero in the class. And then you thought, wow, this is a good thing that every day I'm getting appreciation, so you get the habit of studying. So this is what one way that whenever you get the appreciation, your motivation doubles and you start studying hard. So this is one way. Another way होता है कि हम कभी कभी जो है थोड़ा सा हवा में भी आ जाते हैं, कि जैसे कि मैं आ गया था फर्स्ट ईयर में, ऐसा लगा कि मेरे अलावा कोई भी ये क्लास में होशियारी नहीं है। कभी कभी वी डू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, थोड़ा भी किसी ने अप्रिशिएट किया तो हम हवा में चले जाते हैं, एंड देन वी थॉट कि हमसे कोई नहीं है अभी। लेकिन जब रिजल्ट लगता है, जब मेरा रिजल्ट लगा था फर्स्ट ईयर का, आई गॉट 78 मार्क्स, 55 से लेके 78 हो गया। ओके, and then one of my classmate got something 80% marks, तो मेरे से 2% ज्यादा मार्क्स लिए उसने। so I thought wow, कैसे क्या हुआ, तो उसने तो एक भी आंसर नहीं दिया था क्लास में। she has not answered a single questions in the class, but she is clever than me। तो जब मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ कि नो आई वाज रॉन्ग, कि मेरे से भी क्लेवर बच्चे हैं क्लास में, एंड देन आई पुट अ लाइन कि ये मेरी लाइन है, और ये लाइन अभी जो है मेरी लाइन ये छोटी वाली है, बड़ी लाइन है, अभी ये लाइन को मुझे क्रॉस करना है। इसका मतलब क्या है, मेरी कंपटीशन स्टार्ट हो गई। अभी मुझे पता चला है मेरा पोटेंशियल, कि उससे कम मेरा पोटेंशियल, अभी मुझे उसके आगे जाना है। एंड देन आई स्टार्ट वेरी हार्ड। सेकंड ईयर आया, आई गॉट 84 मार्क्स, बट शी गॉट 85% आई एम टॉकिंग, स्टिल आई वाज 1% लैगिंग बिहाइंड। And then again in the third year, I was completely mad, and I thought, no, now this is the third year, I will consider as a war for me, and I consider myself as a war for me. And at the result of that, you can imagine, in the university, I scored top marks in particularly 2 subjects out of out. So this is what the competitions. अगर आप किसी के साथ competition करते हो, automatically the graph of your progress will go on increasing. मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो है हमारा काउंटर पार्टनर जो है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो सिलेक्ट करना है, एंड देन स्टार्ट कॉम्पिटिंग। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है कि हम जो है दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट है, दूसरे को फॉलो करते हो, इसने जो है ग्रेजुएशन में जो है एमबीए किया है, मैं भी जो है एमबीए करता हूँ, लेकिन मेरा पोटेंशियल जो है डिफरेंट है। जैसे कि
उसने MBA किया है, ओके, सो हिज इंटरेस्ट इज डिफरेंट एंड योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे लाइफ में सिर्फ दो ही ऑप्शंस रहती है, कौन से, कि एक मेडिकल है और दूसरा इंजीनियरिंग है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं, ऐसा भी हमारी सोच है। लेकिन आई एम श्योर कि इन फ्रंट ऑफ यू टुडे आई am having a simple BSc degree in my graduation. I did MSc and then I had lots of career option कि मेरे पास इतने सारे जॉब थे कि I used to select कि मुझे एक साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, so this is what the choice। लेकिन अगर तुम एक्सेल अगर होते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में तो दूसरी होती है कि बहुत बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि अरे इसके बाजू वाला जो है फॉरेन में चला गया, चलो मेरे बच्चे को भी फॉरेन में भेजते हैं। Going abroad is not bad, I'm telling you, okay, but you should build your that particular path correctly। दूसरे ऐसा किया इसलिए मैं वैसा करूंगा, don't think that way। You have to understand your potential, your liability, your particular interest and all together you have to decide कि मुझे ये करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस या कुछ ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस बहुत सारे अच्छे होते हैं, नॉट नेसेसरी टू हैव दैट वन थिंग गुड। अगर मुझे वो नहीं मिला है तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी किसी ने प्रिपरेशन किया है कि नहीं मुझे जो है अभी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, अगर वहां पे अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो मेरा करियर जो है बर्बाद। सो नेवर एवर थिंक लाइक दैट। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी डिग्री, अगर तुम एक्सेल हो, कह रही हूँ चुप रहे, मैं उधर से इसके लिए हॅलो, इधर आई सॉरी थी। सर, हाँ सर अनम्यूट करा, हा सॉरी, म्यूट केलं होतं, हा ओके। चुकून झालेलं। Just mind only that participants should not be unmute, okay। So need not to bother that कि कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन मिला है। जो भी कॉलेज में एडमिशन मिला है, put your efforts, 100% effort and definitely the success is yours। तीसरी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि बहुत बार ऐसा भी होता है। Let me just move on to this slide, okay, okay। So already I have covered these things। Pay attention to your passion and area of interest। मैंने जो पहले ही बोला है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, अगर आपको अगर इंटरेस्ट है आर्ट्स में और पेरेंट्स बोल रहे कॉमर्स करो और तुम्हारे और रिश्तेदार बोल रहे साइंस करो, डोंट गेट कंफ्यूज। गिव द प्रायोरिटी टू योर इंटरेस्ट, जो भी है फील्ड, एंड पुट योर एफर्ट्स 101% टू दैट। अभी एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स का मतलब होता है कि जैसे कि हम जैसे कि यू नो घर में बर्तन जो है हर दिन मांजते हैं, यानी साफ करते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा सोचा है कि बर्तन को जो है सिर्फ पानी से ही धो दिए, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर ऑक्साइड आ जाते हैं और उसके जो है गंदा लेयर बन जाता है। तो हमें जो है हर दिन उसको जो है रब करना है, उसको जो है अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो स्टडी में भी ऐसे ही होता है। जो भी ग्रेजुएट या तुम 12th में हो, आई एम श्योर कि जितना भी टाइम आपके पास है, जस्ट रब योर माइंड वेरी हार्ड। जितना तुम पढ़ाई करेंगे, जितना तुम पढ़ेंगे, जितना तुम टाइम देंगे, उतना ब्रिलियंसी जो है, दैट इज व्हाट, जो बर्तन जो है हम जितना घासते हैं ना उसको, तो उसका चमक बढ़ जाता है। तो वैसे ही लाइफ में है कि जितना पढ़ाई करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत वीक हूँ पढ़ाई में, ओके, मुझे समझ में नहीं आता है। यस, दैट्स ट्रू। अगर किसी ने भी बोल दिया कि एक बार तुम पढ़ो, तो हो सकता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम हो, तो उसको समझ में कम आएगा। आई वॉज लाइक दैट कि मुझे 11th और 12th स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं समझ में आता था। आई रिमेंबर दैट स्केलर एंड वेक्टर, 2 words the teacher has written on the board and he asked me the questions, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था ये स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। तो जो चीज हमें समझ में नहीं आती थी, तो हमें समझ में नहीं आएगी वो, और हम कितना भी पढ़ेंगे तो वो रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो बेटर वे, लेकिन ये रट्टा मारने की जो आदत है ये कब तक होती है? जब तक वो एक लेवल रहती है। एक लेवल क्रॉस करने के बाद आपको सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आता है। सबको बोल दिया कि एक दिन में जो है तुम ये किताब पढ़ो, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू पुट मोर टाइम, विद मोर टाइम। जो भी टॉपिक है कंटेंट से पढ़ाई का, पुट लिटिल बिट मोर एफर्ट्स एवरी डे। अगर तुम उसको बार बार पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि पहले इसमें तुमको समझ में आएगा, दूसरे इसमें थोड़ा समझ में आएगा, तीसरे इसमें और ज्यादा, 4th 5th, गो टू द 10th टाइम एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। जितना ज्यादा बार बार उसको पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम देंगे, आई एम श्योर यू विल बी अ स्मार्ट पर्सन।
नो योर एप्टीट्यूड एंड स्ट्रेंथ। बहुत बार ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड हमारा और स्ट्रेंथ क्या है यही पता नहीं चलती। जैसे कि मैंने मुर्गी का एग्जांपल दिया आपको, जो चिकन, जो ईगल के चिकन थे उसको पता था उसका यानी उसको उसमें पोटेंशियल था, उसमें एप्टीट्यूड था, स्ट्रेंथ था। अगर चिकन ने बोल दिया होता कि फ्लाई, तो वो फ्लाई हो सकते थे। लेकिन हमें ऐसा कोई आता ही नहीं हमारे लाइफ में कि बताता है कि यू आर द ईगल। इंडिया के जितने भी, यानी नॉट इंडियन, आई एम नॉट स्पेसिफिक, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव अ सेम आईक्यू। सबका एप्टीट्यूड स्ट्रेंथ ये सेम होता है। एप्टीट्यूड कब से बढ़ता है? जितना ज्यादा पढ़ेंगे। मैंने वही बोला है आपको कि बर्तन को जितना तो मांजेंगे घासेंगे उतना उसकी जो है शाइनिंग जो है बढ़ेगी। तो पढ़ाई में भी ऐसा है, जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे या हार्ड वर्क करेंगे, उतना आपको जो है वो मिलेगा। सो IQ वाइज एवरीवन, यू मी एंड एनी इंटेलेक्चुअल पर्सन, दे आर सेम। ओनली थिंग, उसने कितने किताब पढ़े हैं, कितने आवर्स उसने टाइम दिया है पढ़ाई के लिए, दैट मैटर्स इज इंटेलिजेंस। और उसका जो है ब्रिलियंसी जो है उस पर काउंट होता है। उसका नॉलेज बड़ा है बिकॉज ऑफ ही नोज द थिंग्स वेयर ही हैज गॉन थ्रू इट। उसने पढ़ा है वो, इसलिए उसको पता है। दूसरा होता है कि अगर समझो हमें पता ही नहीं हमारा पोटेंशियल, तो टेक अ काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन, आई एम नॉट एडवाइस हियर कि कोई प्रोफेशनल काउंसलर है और आपको जो है हजारों रुपए चार्ज कर रहा है उसके पास जाओ। There you will not get the right information about you. और this is for the parents. अगर parents को लगता है कि हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट क्या है, अगर मुझे पता करना है, तो बेस्ट काउंसलर है उसके टीचर। टीचर के साथ जो है काउंसलिंग करो, बात करो, एंड यू विल अंडरस्टैंड योर वर्ड्स कि ये क्या कर सकता है लाइफ में। बहुत बार तो हमारी ये भी परेशानियां हो जाती है इवन पेरेंट्स की भी, कि अभी ये 12th के बाद क्या करेगा मेरा बेटा, 12th के बाद क्या करेगा, ये आर्ट्स में जाएगा कि साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। आर्ट्स, बहुत बार लोग सोचते हैं कि आर्ट्स यानी ओके सब जो है करियर जो है, सॉरी सब साइंस ऐसे सोचते हैं सब साइंस वाले कि सभी के सभी करियर जो है साइंस में होते हैं। नॉट नेसेसरी। आर्ट्स में भी बहुत सारे करियर है, कॉमर्स में भी एन नंबर ऑफ करियर है। जैसे कि अभी जो भी मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में कॉमर्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है बिकॉज CA एंड अदर कोर्सेस आर वेरी डिमांडिंग। तो अभी कोई भी कोर्स करो, यू अंडरस्टैंड कि आर्ट्स में इवन इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम आर्ट्स, बीए कर दिया मैंने, बीए वाला बंदा भी आज के डेट में MBA कर सकता है और किसी मैनेजिंग फील्ड में जा सकता है। वो अगर समझो 12 के बाद उसने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे जो है आज मेरी उम्र 16 ईयर है, जब मैं 18 ईयर है, मैं 12th में हूँ, 12th में मुझे आर्ट्स लेना है, आर्ट्स सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है और मैंने लिख दिया है मेरे दीवार पे कि मुझे जो है आने वाले 5 साल में किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनना है। आई एम श्योर अगर उसने आज 12th में लिख दिया है दीवार पे कि मुझे 5 साल में जो है कलेक्टर बनना है, आई एम श्योर nobody can stop him or her to be the topmost officer in the government. किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर बॉस होता है वो, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग जॉब, बहुत सारा रिस्पेक्ट है। तो आर्ट्स वाला बंदा या कॉमर्स वाला या साइंस वाला कोई भी बंदा, अगर उसने डिसाइड किया, दीवार पे लिख दिया कि मुझे आज के डेट में ये बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मैंने ऑयल पेंट लाया, दीवार पे बड़े अक्षरों में लिख दिया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो दीवार जो है वैसी की वैसी रहेगी, उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। व्हाट आई मीन, योर गोल, जो भी गोल है पहले डिसाइड करना है आपको, GPS डालना है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, लिख डालो कहीं पे तो भी और जस्ट फॉलो इट। मैड हो जाओ, पागल हो जाओ कि नहीं मुझे यही करना है। आई एम श्योर इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years, जैसे कि राजा का मैंने पहले बताया था टाइम, ये 5 साल का टाइम था उसके पास, ये 5 साल के बाद जो है उसको मरना ही था। लेकिन हमारे पास ये 5 साल है, 12वीं के बाद 5 साल ये क्रूशियल ईयर्स रहते हैं। अगर 5 साल में अगर हमने कुछ नहीं किया तो राजा के जैसे ही हमारे को वो जंगल में छोड़ देंगे। यानी जंगल का मतलब ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल ग्रेजुएट होके बाहर आते हो विदाउट एनी स्किल, कोई आपको पूछेगा नहीं। यू विल बी इन द पुल ऑफ कंपटीशन, एक जॉब के लिए हजारों लोग जो है लाइन में खड़े रहेंगे एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड वन। बी स्कॉलर, बी क्लेवर इन टेकिंग द डिसीजन एंड फॉलो दैट। हमें जो है क्लेवर बनना है इन टेकिंग द डिसीजन, और जो भी डिग्री लेना है यू शुड बी हैविंग अ
प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो है ये प्लान अगर फंस जाता है तो बी हमारे काम में आएगा, सी हमारे काम में आएगा। सो यू शुड प्लान इट अकॉर्डिंगली। तो 12वीं के बाद ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है, एंड यहाँ पे हमारा करियर स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे अगर तुम अच्छी सोच में, इवन पेरेंट्स आई एम टॉकिंग, कि अगर यहाँ पे अगर पेरेंट्स अगर अच्छा ख्याल रखते हैं हमारे तुम्हारे वार्ड्स का, तो आई एम श्योर कि उसका करियर जो है ब्रिलियंट करियर है। सो आई हैव वन चार्ट फॉर यू कि 12वीं के बाद तुम क्या कर सकते हो, और ये सभी को पता है आई एम श्योर। तभी भी मैं एक झलक जो है आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज रिलेटेड आफ्टर 12th, कि 12th के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो। कॉमर्स में अगर जाते हो तो सीए बन सकते हो, ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हो, बीकॉम बीबीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो। ऑल दीज आर द कन्वेंशनल डिग्री, एजुकेशन में जा सकते हो। अगर तुम बीकॉम का अगर डिग्री करते हो तो ये बहुत सारे जो है मास्टर्स के प्रोग्राम तुम्हारे पास है। इवन एलएलबी कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में चले जा सकते हो, इवन नेवी, आर्मी, या जो बड़ी एमपीएससी यूपीएससी जो एग्जाम्स होती है उसके लिए तैयारी कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द डिग्रीज। लेकिन हमने जो है डिफाइन किया है कि हमें कहाँ जाना है, तो यहाँ 12th में ही आपने डिसाइड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है, हमें जो है बोला गया है कि डिग्री कर, तो अगर तुमको डिग्री करना है तो यू कैन डू इट, बट डिसाइड कि मुझे आगे क्या करना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ ग्रेजुएशन इन एनी गुड पर्टिकुलर डिग्री। आर्ट्स में भी तुम वैसे ही कर सकते हो, एजुकेशन में जा सकते हो, तुम्हारे पास बी आर्क होता है, जैसे कि आर्किटेक्ट बनाना है, लेकिन उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरी है। आर्ट्स वाला भी बंदा जो है गुड आर्किटेक्ट बन सकता है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स रहना चाहिए। देन फॉरेन लैंग्वेजेस होती है बहुत सारी, देन इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनिंग, एलएलबी, एंड डिग्री के बाद तुम्हारा एमबीए कर सकती हो। अगेन मिलिट्री कोर्सेस है बहुत सारे, एनडीए, सीआईएसएफ, देन बीएसएफ, एंड एजुकेशन में भी बहुत सारे कोर्सेस है। मास मीडिया में जा सकते हो, फिजिकल टीचर बन सकते हो। सो ऑल दीज आर दी एजुकेशंस वेयर यू कैन पर्टिकुलरली टेक द डिग्री, मे बी द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी 12वीं का जो साइंस का जो चार्ट है, इट्स वेरी बिग, बिकॉज it is considered to be a huge in that field for the opportunities. तो ये पूरे के पूरे जो है ये आर्ट्स में भी जा सकते हैं 12 के बाद, और कॉमर्स में भी जा सकते हैं। सो देयर इज ए फील्ड। अभी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, कि जैसे कि बच्चे का पीसीएम भी अगर है, जनरल साइंस है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है। ओके, इसमें जो है इंजीनियरिंग भी जा सकता है, वो मेडिकल में भी जा सकता है। अगर स्पेसिफिक पीसीबी अगर है तो वो स्पेसिफाई होगा डॉक्टर, एमबीबीएस और पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी है उसके लिए जा सकता है, या इवन बीएससी नॉर्मल डिग्री भी कर सकता है। अगर पीसीएम अगर है तो इंजीनियरिंग का जो है तुम्हारा सेटअप बन जाता है। एंड आई एम श्योर अगर किसी को भी इंजीनियर अगर बनना है तो गो विद द गुड इंस्टीट्यूट। अभी यहाँ पे जो है बीटेक होता है एंड देन बीई होता है। बहुत बार जो है हमें पता ही नहीं होता है बीटेक क्या होता है और बीई क्या होता है। अगर हमें बीई करना है तो ये ट्रेडिशनल कोर्सेस है, दैट मीन्स ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसमें पढ़ाया जाता है। कोई भी कोर्सेज वाइज सेम रहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होती है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कवर हो जाती है। और बीटेक अगर हमें करना है तो अच्छी इंस्टीट्यूट में करना है, जैसे कि आईआईटी है, एनआईटी है। तो ये जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बीटेक होती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, द रिसेंट टेक्नोलॉजी जो होती है that is particularly covered, and that particular field in terms of the job perspective it's very demanding। और आईआईटी का नंबर जो है इंडिया में टॉप मोस्ट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कहलाया जाता है, इवन वर्ल्ड में उसका नंबर आता है। एंड देन आईआईटी के लिए अगर जाना है तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे हार्ड एग्जाम जो होती है आईआईटी जेई के लिए आपको प्रिपेयर होने का रहता है। अभी आईआईटी जेई का एग्जाम जो होता है, you know, IIT JEE is one of the toughest exam in India, even we can say in the world। The reason behind उसमें जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है thoroughly and a vast syllabus रहता है, and they ask completely different patterns every year। ऐसा नहीं होता है कि same pattern है एग्जाम का, every year they change their question patterns, everything, and it is considered to be one of the toughest exam। अगर कोई बंदा
आईआईटी के लिए जाना चाहता है, अगर वो 10वीं में अगर है, या आई वुड से कोई पेरेंट है यहाँ पे, उसका अगर बेटा बेटी अगर 8th में है, तो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। फाउंडेशन उसका जो है अगर स्ट्रांग रहेगा 8th 9th 10th, आई एम श्योर उसका लाइन जो है अभी से फिट हो जाएगा। अगर उसको नीट की तैयारी करना है या आईआईटी के लिए जाना है, बीटेक के लिए, तो उसको जो है 8 से अच्छी तरह से फाउंडेशन बिल्डअप करना है। ओके, सो दिस इज व्हाट द पर्टिकुलरली द कोर्सेज आफ्टर द 12th। अगर समझो आईआईटी के लिए जाना है बंदे को, या आई वुड से कि नीट का एग्जाम पास हो गया लेकिन उसका स्कोर्स जो है बहुत कम है, यानी स्कोर जो आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, नीट एग्जाम होती है, उसके बाद उसका स्कोर कम आता है, मेडिकल कॉलेज जो होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे एडमिशन नहीं मिलता है, then we have to go for the other colleges where they are the privately that corporate world we can say, where the fees will be very high। fees कितनी रहती है, lakhs में रहती है, and reaches to the up to the crores। okay, it start with the lakhs and it reaches to the crores। अगर तुम्हें बीटेक भी करना है, okay, बीटेक भी करना है, कोई बंदा जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहा है बीटेक के लिए, ओके, somehow उसको समझो, वी कैन से एग्जांपल बीटेक मिल भी जाएगा, तो उसका जो एक्सपेंसेस होता है सालाना करीबन 4-5 लाख रुपए तो भी आ ही जाता है। सो दिस इज वन थिंग। अगर समझो कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी के लिए, जो बंदा आईआईटी के लिए जेई के लिए प्रिपरेशन करता है, बट समहाउ he did not get the score where he or she will be eligible for the IITs or NITs। तो ऐसे में अगर वो चाहता है कि मुझे IIT में ही करना है या NIT में करना है, तो he will become little bit frustrated। तो he or she should have a plan B। अगर यह समझो तुम्हारे पास बी आर करना है, दिस इज अनदर वेरी टफ एग्जाम, बी आर की, वो भी IIT जेई की जैसी एग्जाम होती है। इवन इसके लिए भी अगर तुमको अगर तैयारी करना है एंड समहाउ यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो आपके पास जो है प्लान बी होना चाहिए। ओके, जो बंदा आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, ही इज डेफिनेटली अ स्कॉलर, वो अच्छी पढ़ाई की है, उसका बेस भी अच्छा है, लेकिन समहाउ उसको जो है चांस नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूज कंपटीशन। ओके, लेकिन इंडिया में जो है बहुत सारा कंपटीशन होता है एंड दैट कंपटीशन समहाउ लैग बिहाइंड दी स्कॉलर स्टूडेंट्स। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो बी प्लान के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अभी समझो आपने डिग्री ले लिया, बहुत सारी डिग्री ले ली इसमें से, ओके, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या सीए बने हैं, या कोई तो भी टीचर बना है, लेकिन टीचर बना इन द सेंस डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद देयर इज नो गारंटी एट ऑल कि आपको जो है जॉब मिलेगा ही। द रीजन बिहाइंड दीज आर द फैक्टर्स, कि आप कभी कभी सोचते हो कि मेरे पास जो है आईआईटी का डिग्री है, ओके, यू विल गेट द डिग्री नो डाउट, या मेरे पास एमबीबीएस है, मेरे पास बी है, कोई तो भी कॉलेज से जो है मैंने बी किया है, एंड देन मेरे कांटेक्ट भी है बहुत सारा, कांटेक्ट इन द सेंस कि मेरे फादर जानते हैं किसी ऑफिसर्स को, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। सो ऑल दीज आर द फैक्टर व्हिच आर इमटेरियल्स, योर लोकेशन, योर क्वालिफिकेशन, योर कॉन्टेक्ट्स। लेकिन इसके साथ अगर आपके पास अगर ये 3-4 वर्च्यूज अगर है, दैट इज व्हाट, योर स्किल, योर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड मोटिवेशंस एंड योर पर्सनैलिटी, ये चारों चीजें अगर आपने अगर खुद होके डेवलप किए, ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके लिए अलग से क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम पढ़ाई करते हो, जब भी तुम इंटरेक्ट होते हो किसी के साथ, ऑटोमेटिकली योर पर्सनैलिटी बिल्ड्स अप, योर स्किल। बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर ओनली फोकस ऑन ओके जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन उसको अगर समझो मार्केट में भेज दिया किसी चीज को लाने के लिए, तो उसको पता ही नहीं होता है उसको निगोशिएट कैसे करें। सो दैट सॉर्ट ऑफ स्किल जब भी तुम लाइफ में जीते हो, हर चीज का पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वैकेशन है, एंजॉय द वैकेशन इन सम डेवलपिंग सम स्किल्स, कुछ अलग से कोर्सेज करो, या कम्युनिकेशन स्किल है तुम्हारे पास, या किसी एनजीओ में जाके काम करना है, या तुम किसी सोशल एनजीओ में चले जाते हो, या सोशली इंटरेक्ट होते हो किसी फंक्शन में, सो दैट बिल्ड्स योर करियर। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं तू अभी पढ़ाई कर, लाइफ में अभी जो है पढ़ाई सिर्फ इम्पोर्टेंट है,
लेकिन पढ़ाई के साथ ये चारों चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। उसके पास अच्छा डिग्री है, नो डाउट, लेकिन उसने अगर कम्युनिकेट नहीं किया प्रॉपर, उसने अगर कन्विंस नहीं किया लोगों को, उसको समझ में नहीं है वैल्यूज क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, तो वो कुछ भी करके जो है पैसा कमाएगा, बट ही विल नॉट एंजॉय हिज लाइफ। हिज इंटरेस्ट क्या है? सो ये चीजों का भी आपको ख्याल रखना है डिग्री लेते लेते। अभी हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं कि जैसे कि मैंने बोला है कि प्लान बी, कि हमारे पास प्लान ये है कि हमें जो इंडिया में फोन है, म्यूट हो जाइए प्लीज। तो इंडिया में हमें जो है बहुत सारा सेटबैक मिला है कि नहीं, हमें जो है बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन somehow we ended with the frustration कि बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद भी जो है चॉइस नहीं है। रीजन बिहाइंड कि कंपटीशन बहुत सारा है। कंपटीशन होने के बावजूद हमें जो है सबको कॉम्पीट करना है, लेकिन यही अगर हम सोचते हैं आफ्टर 12th ओनली, हमारे पास अगर बी प्लान अगर रेडी है, तो कैन वी गो टू द अब्रॉड ऑल्सो। अब्रॉड का लाइफ कैसा होता है? इंडिया का लाइफ हमने जान लिया कि हमें जो है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके जो है अच्छे स्किल लेना है, अच्छे स्किल लेने के बाद देन वी हैव टू गो फॉर द पर्टिकुलर द गोल कि जो हमने डिसाइड किया है। लेकिन इसके साथ पैरेलली आफ्टर 12th ऑल्सो यू कैन डिसाइड दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म कि हमें जो है बी प्लान जो है हमारा वो रेडी होना चाहिए, क्योंकि ए प्लान अगर फेल हो जाता है तो बी प्लान, बी प्लान अगर फेल हो जाता है सी प्लान, तभी जाके हम जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बी प्लान के लिए क्या कर सकते हैं कि अभी जो भी बंदा आईआईटी के लिए या नीट के लिए या इवन आई कैन से लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जो सीएटी होती है, या कोई जीमैट का, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स होती है इंडिया के लिए पर्टिकुलरली, जैसे आर्किटेक्ट के लिए एग्जाम होती है, ये बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है बंदा, पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन के साथ उसने पढ़ाई भी किया, लेकिन somehow he is not getting the opportunity to go to the good institute like IITs or NITs। तो अभी ऐसे बंदे ने क्या करना चाहिए? There are the exams to go to the abroad and very simple exams। जैसे कि पहले एग्जाम मैंने बताया, ये SAT एग्जाम है, दैट इज स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये एग्जाम जो होती है, ये अमेरिकन स्कूल बोर्ड एग्जाम लेता है। ये एग्जाम होती है 12 के बाद। अगर हमें फॉरेन में ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है, तो हम जो है आसानी से ये डिग्री को पास करके फॉरेन में जा सकते हैं। अभी कैसे? अभी ये सेट का एग्जाम होता क्या है एग्जैक्टली? सैट सैट जो होती है, ये होती क्या है? तो ये जो 10वीं तक का सिलेबस होता है तुम्हारा, 10वीं तक का मैथ, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग, और दूसरा होता है मैथ्स विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर। अगर तुम 10वीं तक का मैथ्स में अगर परफेक्ट हो, और रीडिंग और राइटिंग में इंग्लिश में अगर तुम परफेक्ट हो, शुरू से तुमने अच्छा पढ़ाई किया, नॉवेल्स पढ़ना किया, किताबें पढ़ी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें पढ़ते पढ़ते तुम्हारा वोकैबुलरी डेवलप हो गया, रीडिंग स्किल डेवलप हो गया। बहुत बार हमारा इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन समहाउ वी हैव दैट हैबिट कि भाई हम पढ़ लिखे हैं। ये एग्जाम जो होता है, जो बंदा 10वीं पास होता है उस वो एग्जाम ही दे सकता है, 10th पास वाला भी, क्योंकि उसका सिलेबस जो होता है रेस्ट्रिक्टेड है अप टू द 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो जो बंदा आईआईटी के लिए या नीट के लिए अगर प्रिपरेशन करता है, आई एम श्योर दिस एग्जाम्स इज वेरी वेरी सिंपल। उसको सिर्फ उसके जो है प्लान आउट करना है कि जो भी वैकेशन है या आफ्टर द एग्जाम, जैसे कि अभी सैट का एग्जाम जो है 5 बार होता है अभी रिसेंटली, साल में 5 बार होता है। तो मार्च से लेके जो है दिसंबर तक का एक एक महीने का, दो महीने का गैप देके जो है एग्जाम होती है। और समझो हमने नीट के लिए प्रिपेयर किया है, हमारी नीट का एग्जाम हो गया, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, जेई का हमारा दोनों एग्जाम हो गया, एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स का जो टाइम है तुम्हारा, जैसे कि अभी तुम्हारा वेटिंग फॉर द रिजल्ट का टाइम है और आपके पास 2 महीने का टाइम है। इन दिस 2 months ऑफ टाइम, जैसे कि हम मार्च में फ्री हो गए, मार्च में फ्री होने के बाद मार्च अप्रैल मई 2 महीने हमारे पास है। 2 महीने में तुम इस सैट का एग्जाम इतना परफेक्ट कर सकते हो। जो बंदा जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई एम श्योर कि वो उसको ज्यादा पढ़ाई भी करने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो वो आसानी से जो है एग्जाम पास हो सकता है। इसका फीस होता है
इसका फीस है समथिंग 6,000 से लेके 8,000 के बीच में उसका फीस रहता है। लेकिन ये एग्जाम का थोड़ा क्वालिटी वाइज है कि ऐसा नहीं कि हमें एग्जाम देना है और बस ये एक बार अगर हमें एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया तो दूसरी बार देते हैं। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम देना है, प्लान किया ना बाहर देश में जाने का है, तो प्रिपेयर नाइसली फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर समझो कोई आज के डेट में मुझे सुन रहा है 10वीं में अगर है और उसने सोचा है ये बी प्लान के बारे में, 12th के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं आईआईटी में जाता हूँ या मुझे अगर आईआईटी में नहीं मिलता है तो मैं फॉरेन में जाता हूँ। तो दिस इज द परफेक्ट प्लान। 10वीं से तुम प्लान करो, स्लोली स्लोली जो है उसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इवन गूगल पे पड़ा हुआ है, पास पेपर्स है, जस्ट गो थ्रू इट, रीड द इंग्लिश बुक्स। जब भी तुमको टाइम मिलता है, फ्री टाइम, गो थ्रू द लिटरेचर, रीड करो, पेपर पढ़ो। जितना इंग्लिश का तुम्हारा पढ़ने का हैबिट अच्छा रहेगा, आई एम श्योर ये सैट एग्जाम उसके लिए एकदम सिंपल एग्जाम है। रीडिंग एंड राइटिंग का टेस्ट रहता है और सिंपल कैलकुलस रहता है, मैथमेटिक्स 10th लेवल का, एंड यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जाम। अभी ये एग्जाम के लिए जो है दो सेक्शंस रहते हैं इसमें, 800 मार्क्स के पॉइंट्स रेट रहते हैं इसमें। जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश के लिए 800 पॉइंट्स होते हैं, एंड देन मैथमेटिक्स के लिए जो है विद कैलकुलेटर एंड विदाउट कैलकुलेटर 800 पॉइंट्स होते हैं। और उसका जो है दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइमिंग। तो ये पूरा का पूरा इसमें जो है ये पैटर्न दिया हुआ है। अभी इसमें जो है 1600 का पॉइंट टोटल होता है। अगर 1600 में से अगर तुमको 1500 से ऊपर अगर मार्क्स मिलते हैं, आई एम श्योर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको फॉरेन में इन द 180 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, यूके, जापान, all European countries, nations, they will accept you as a this particular score for the admission purpose. अभी ये एग्जाम के साथ अभी अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा है 1500 ऑनवर्ड, तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इन अब्रॉड यूनिवर्सिटी दे स्पॉन्सर्ड यू द स्कॉलरशिप। अभी जैसे कि मुझे अगर समझो मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने एलिजिबल कर दिया ये एग्जाम एंड देन आई कैन गो टू अब्रॉड, दिस इज वन थिंग। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आई हैड बीन टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरे पास 5 पैसे भी नहीं थे, 5 पैसे भी नहीं थे। फुल पैकेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दिया था, करोड़ ऑफ रुपीज, और मैं वहां पे डिग्री लेके पैसा भी कमा के आया। तो दिस इज व्हाट वन थिंग हमें जो है सोचना है। अगर एक बार हम प्लान करते हैं कि भाई ये डिग्री हमें जो है पास करना है, ये पर्टिकुलर सेट एग्जाम अगर पास करना है, तो पैसे का जुगाड़ कैसे करें? देयर आर दी अल्टरनेटिव्स। व्हाट अल्टरनेटिव्स? आज के डेट में जो भी बंदा 12th में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसने सोचा है कि आईआईटी के लिए मुझे जाना है या बीआर करना है या नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उसका पहले से ही पता रहता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को जो इतना खर्चा आने वाला है, तो पहले से ही सेविंग करके रख देता है। बट दैट पर्टिकुलर सेविंग यू कैन यूटिलाइज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर उसको अगर आईआईटी में नहीं मिलता है या नीट में अगर नहीं मिलता है, एम कैट एग्जाम है, अगर समझो नीट यहाँ पे नहीं क्लियर हो जाता है तो सैट के जैसे ही एम कैट है, ओके, तो डायरेक्ट मेडिकल के लिए वहां पे तुम चले जा सकते हो। तो अगर वो कॉलेज में कुछ फंडिंग रहती है, कॉलेज की खुद की फंडिंग रहती है, तो दे स्पॉन्सर द स्कॉलरशिप ऑन द स्कोर, कि अगर आपका स्कोर 1500 से ऊपर अगर है, तो 1500 के ऊपर वाले को सोचते हैं कि दिस इज अ ब्रिलियंट किड, ये बच्चा जो है बहुत होशियार है, वी शुड एडमिट हिम, वी शुड गिव हिम अ चांस। क्योंकि जब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं सैट पास करके, तो यहाँ पे जो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, वो सोचते हैं कि हमारे पास जो आने वाला बंदा है वो टॉप का ही रहना चाहिए। अगर वो टॉप का वो कैसे रहेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ाई घर में कैसे करता है? वो उसको कुछ पता नहीं होता है। उनको पता होता है कि सैट का कोर्स कितना है इसका, सैट का कोर्स 1500 से ऊपर है। There are many Indian students who scored out 1600 out of 1600 लिया है। MIT, L यूनिवर्सिटी जैसे जो है 100% स्कॉलरशिप स्पॉन्सर किया है। सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो कि अगर तुम्हारा स्कोर अगर 1500 ऑनवर्ड अगर है, तो फॉरेन की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस आपको स्पॉन्सर्ड करती है अप टू 90%, 80% स्कॉलरशिप, और आपको कितना पे करना होता है? 10%, 20%, एंड दैट गोज इनटू मे बी 5 lakhs to 10 lakhs। अगर तुम इंडिया में भी अगर किसी अच्छी जगह से अगर एजुकेशन लेना चाहते हो, अगर समहाउ गवर्नमेंट कॉलेज में अगर उसका नंबर नहीं लगता है, तो प्राइवेट में आपको उतनी फी देनी पड़ती है, उससे हालांकि ज्यादा। और अगर तुम रैंकिंग वाइज देखते हो, इंडिया के इंस्टीट्यूट का रैंकिंग और यूएस यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का रैंकिंग, इट इज टॉप इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में तुम्हारा रैंकिंग रहता है। सो दिस इज वन वे कि हम जो है
सैट एग्जाम के थ्रू बेसिक कोर्सेज जो होते हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए तुम सीधा जा सकते हो। ग्रेजुएशन के लिए टॉपिक ना, जिस ग्रेजुएशन में तुम यहाँ पे जैसे कि एमबीबीएस करते हो, बीटेक करते हो, बीई करते हो, या तुम बीएससी करते हो, या जो भी डिग्रीज है, ऑल द डिग्रीज आर पॉसिबल देयर इन अब्रॉड यूनिवर्सिटी आफ्टर 12th। जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें लॉ में जाना है। लॉ में जो है इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है तुम्हारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो अभी यहाँ पे अगर मुझे कंपटीशन में समहाउ एडमिशन ही नहीं मिला, तो मैं एल सैट का तैयारी कर सकता हूँ। एल सैट एग्जाम होती है, तो एल सैट होती है कम्प्लीटली लॉ के लिए। तो एल सैट पैटर्न सेम है, एम कैट का भी पैटर्न सेम है, मेडिकल में जाना है। ये सीटी एग्जाम है, दैट इज द अमेरिकन कॉलेज टेस्ट एग्जाम है। ये तुम्हारा आगे का कोर्स है, ये जीआरई और तुम्हारा जीमैट, ये जो होती है ये तुम्हारी एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद होती है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। तो तुम्हारा सैट एग्जाम है और तुम्हारा एसीटी एग्जाम है, एम कैट है, या तुम्हारा एल सैट एग्जाम है। दिस ऑल आर द एग्जाम्स फॉर द लॉ। एल सैट लॉ के लिए होती है, एम कैट मेडिकल के लिए होती है, सैट जो होती है इट गोज इनटू द इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ऑल कोर्सेज। ऐसा कुछ नहीं कि मैं इंजीनियरिंग के बारे में बोल रहा हूँ, सैट एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। अगर बीए करना है इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो आप सैट एग्जाम कर सकते हो, सैट एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। तो बीए बीकॉम के लिए भी तुम बाहर जा सकते हो। अगर तुम बीए भी अगर बाहर देश से करते हो तो यू विल हैव वाइड एक्सपोजर। दूसरी होती है तुम्हारी एग्जाम आईएलटीएस और टॉफेल। इसके अलावा कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो होती है आईएलटीएस और टॉफेल एग्जाम लेती है। जैसे कि ये दो एग्जाम्स है, आईएलटीएस और टॉफेल। तो इसका भी स्कोर जो है, स्कोर इन द सेंस कि एलिजिबिलिटी, इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, वो सिर्फ कभी कभी लेते हैं। लेकिन ये सैट एग्जाम जो है इट इज कॉमन टू ऑल दी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स इन दी वर्ल्ड। पर्टिकुलर 180 कंट्रीज विल टेक दिस सैट एज ए स्कोर। दूसरी होती है तुम्हारी जीमैट। अगर तुमको मैनेजमेंट जाना है तो मैनेजमेंट के लिए आपको जीमैट लगती है। जीआरई अगर समझो ग्रेजुएशन के बाद जाना है, हमने सोचा है कि ग्रेजुएशन इंडिया में ही करना है, ग्रेजुएशन के बाद हमें एमएस के लिए जाना है। एमएस इन एनी फील्ड है। एमएस जो होता है, आर्ट्स में भी तुम एमएस कर सकते हो, कॉमर्स में भी तुम एमएस कर सकते हो, साइंस में भी एमएस कर सकते हो। सो ऑल एमएस विल इंक्लूड ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज जीआरई। इसका भी पैटर्न ऐसे ही रहता है, उसमें भी इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है। एंड देन अगेन उसका भी अगर बैंड अगर 300 अबव आ जाता है, यू विल गेट अ गुड स्कॉलरशिप एज वेल एज अ गुड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद जो है आपको जॉब के लिए भी ऑफर मिलती है वहाँ पे डायरेक्ट एमएस के बाद। एंड यू कैन डू द बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर आपको एमएस में अगर उधर जॉब मिल जाता है। सो दीज आर द थिंग्स वेयर यू कैन सेट एज ए योर करियर इन इंडिया। इफ नॉट पॉसिबल देन यू कैन थिंक अबाउट द अब्रॉड। ये जीआरई के बारे में कुछ बोला है। सो दिस इज योर जीआरई स्कोर होता है। अगर 300 अबव अगर रहता है पॉइंट्स तुम्हारा, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट place where you will get the good education as well as the scholarships. दूसरा होता है कि अभी समझो ये हो गया तुम्हारा फॉरेन यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरिंग यू स्कॉलरशिप, बट इक्वली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, then Reliance Foundations, all these corporate agency also sponsoring some of the scholarships for the graduation degree as well as the post graduation degree, like after 12th as well as after degree. तो आपको जो है करना यही है कि सर्च करना है। क्या क्या सर्च करना है? हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल में जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो है जो ऐप है वो देखते हैं, यूट्यूब वगैरह। लेकिन कुछ अच्छी चीजों के लिए गूगल भी बना हुआ है। गो टू द गूगल, टाइप what you want, just Google will search it out for you and that is the best. Even I would say कि पढ़ाई में भी अगर आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई में, गो टू द गूगल, गो टू द यूट्यूब फॉर द बेटरमेंट। वो आपको जो अच्छे लेक्चर्स देंगे, अच्छे जो कंटेंट्स देंगे एंड स्टडी इट नाइसली। दूसरा एक और है कि अभी जो 12th पास हुए हैं, 10th पास हुए हैं या 12th पास हुए, उनके लिए स्कॉलरशिप है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सम कॉर्पोरेट बॉडीज। उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको पता है बहुत बार ऐसा एक ऐड आता है कि कोलगेट का ऐड होता है कि गिविंग इंडिया मोर रीजन टू स्माइल।
तो ये एक स्कॉलरशिप है जो 11 स्टैंडर्ड से लेके तुम्हारा ऑल द डिग्री कोर्सेज तक जो है स्पॉन्सर करता है। लेकिन बहुत बार जो है हम इग्नोर करते हैं, एडवर्टाइज आता है लेकिन हमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये ऐसे ही कंपनी जो है एडवर्टाइज कर रही है अपना प्रमोशन करने के लिए। नो डाउट दे आर डूइंग द प्रमोशन, बट दे आर स्पॉन्सरिंग रियली। So what they are sponsoring, if you go to their website, you will come to know what are the eligibility for that, and monthly they will sponsor you the scholarship from 1000 से लेके 5000 से लेके लाख रुपीस तक स्कॉलरशिप होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एजेंसी। इसका जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, बेनिफिट होता है 30,000 पर एनम फॉर 4 years, और 12 स्टैंडर्ड के बाद 10 स्टैंडर्ड के बाद तुम जो है एग्जाम दे सकते हो। सो दीज आर ऑल द एलिजिबिलिटी requirement documents particularly. You can go through the website and you will understand. दूसरी एक कॉर्पोरेट बॉडी है सीताराम जिंदल फाउंडेशन, यहाँ पे भी 10वीं से लेके जो है ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप मिलती है मंथली बेसिस। ओनली थिंग यू हैव टू फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी। इफ your income, your score, that is a percentage in 10th 12th is good, you can go for the scholarship. दूसरी स्कॉलरशिप ये उसका नंबर दिया हुआ है कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज अ पर मंथ। अगर कोई आपको 1500 रुपए या 1000 रुपए या 1400 रुपए पर मंथ अगर दे रहा है, इट इज बिग नंबर, यू कैन हैव दैट फॉर अ गुड कॉज। दूसरी है तुम्हारा दूसरी स्कॉलरशिप है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। दिस इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप एंड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप आल्सो। दूसरी है कि बहुत बार अभी ऐसा होता है कि क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे कि फ्लड हुआ है या साइक्लोन हुआ है, and in that the families get disturbed and the education particularly collapse. So in that case the HDFC Bank sponsored some scholarship under the name called as ECSS, Educational Crisis Scholarship Support. तो अगर आप एलिजिबल अगर हो सकते हो उसके लिए, तो you just go through that website and you can fill up the form and you will get the scholarship. दूसरी स्कॉलरशिप है तुम्हारी कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड। दिस इज अगेन द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो है आपको लोन भी मिलता है अप टू 90%, कभी कभी जो है 100% भी लोन देते हैं। 80 से लेके 90% लोन देते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस। अगर आपको समझो फैमिली में फाइनेंशियल इशू है, then you can go for that. If your eligibility is perfect for this, you can just fill up the form and get the loan, which is I think interest free for a couple of years up to your education, and after getting the job you can repay that. So this sort of facilities are there. Those who are economically poor, they can go for this sort of scholarship. और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो है फॉरेन में जाना है, फॉरेन में जाने के लिए अभी जैसे कि बोला गया है कि 10% या 20% हमारा जो है एलिजिबिलिटी जो है खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अभी इसलिए कि हमारे पास पैसा होना ही जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि वो कुछ टीम होते हैं उनकी या बैंक होते हैं, दे विल आल्सो स्पॉन्सर द एजुकेशनल लोन। 10% 20% जो है आराम से वो देते हैं, एंड दैट टू उनका भी एक लिमिट रहता है कि वो एजुकेशन जब तक होता है तब तक उसको पैसा नहीं रिपे करने का रहता है। आफ्टर दैट यू हैव टू रिपे। तो आपको अगर फॉरेन में अगर डिग्री मिल जाता है एंड यू हैव टू पे दैट लोन, तो इट इज वेरी सिंपल। फॉरेन में अभी देखो कि आई हैव सीन कपल ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज देयर इन ऑक्सफोर्ड कि कैसे कैसे लोग जो है फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाते हैं। जैसे आई एम टेलिंग यू वन और टू स्टोरी। मैंने एक बंदा ऐसा देखा है कि वो घर का इतना अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ 5 एकड़ जमीन थी। उसने 5 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन जो है बेच डाली और उसने MBA में एडमिशन ले लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अलाइड कुछ कॉलेजेस थे, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, एंड ही पेड समथिंग लाइक 10 or 15 लाख रुपीस एज ए फी। somehow he has landed to the course. उसने कोर्स किया, while doing the course of 2 years MBA उसने क्या किया, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया। The student is liable to do the part time job 20 hours per week, he can do the job. अभी वो जॉब में क्या फैसिलिटीज होता है, देखो जब भी फॉरेन में हम जाते हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूड, खाने के वादे होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसेस रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर तुम किसी, अभी एक बंदा था वो मैकडोनल्ड में काम करता था, उसको आवरली 10 पाउंड मिलते थे। आवरली 10 पाउंड, इसका मतलब क्या है, 1 घंटा अगर काम करेगा तो कितना पैसा मिलेगा उसको, 900-800 रुपीज 1 घंटे का। अगर आपको कोई जॉब देता है 1 घंटे में
आपको इतने पैसे मिलेंगे तो आप करेंगे, एनीबडी कैन डू इट। अगर 1000 रुपए मुझे 1 घंटे का मिल रहा है तो एनीबडी कैन। तो बच्चा अगर वीकली 20 घंटा काम करता है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड भी मिल रहा है, इट्स अ बोनस। तो वो क्या करेगा, उसका लिविंग एक्सपेंसेस भी उसमें से निकालेगा और पैसा भी बचाएगा, और उसको अगर लायबिलिटी है कुछ घर में बेचने का तो वो भी बेच सकता है। सो आई हैव सीन दिस एग्जांपल्स। उसने 15 लाख का खेत बेच के इन्वेस्ट किया है इन द एमबीए डिग्री, डिग्री भी लिया, पैसा भी कमाया, उसके बाद 2 साल उसने फुल टाइम वर्क किया है और करोड़ रुपए कमा के जो है गांव में आके 10 एकड़ जमीन लिया और उसको डिग्री भी मिला फॉरेन का, एंड ही इज सेटल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन कंट्री। So there are number of examples I have seen कि यहाँ पे कैसे डेयरिंग करने का रहता है। बहुत बार हम एज ए पेरेंट सोचते हैं कि मेरा बेटा 12th के बाद फॉरेन में जाएगा, फॉरेन का कल्चर जो होता है हमें पता है, तो वो बहक जाएगा। अगर उसका अगर कल्चरल रूट अगर स्ट्रांग है और आवर टीचिंग एज ए पेरेंट अगर अच्छी है तो डेफिनेटली वो अच्छा ही करेगा। तो डेफिनेटली हमें जो है हमारे बच्चों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, एंड वंस दे गो अब्रॉड दे अंडरस्टैंड, दे बिकम इंडिपेंडेंट। उनको सही क्या है गलत क्या है सब कुछ समझ में आता है एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट। आई हैव सीन मेनी किड्स कि अच्छे अच्छे घर से, जो कि अरब यानी अच्छे माँ बाप यानी कमाने वाले हैं, करोड़पति है, लेकिन उसके बेटा बेटी फॉरेन में जाके काम करते हैं या खुद डिपेंडेंट बनते हैं। माँ बाप को बोलते हैं कि मुझे पैसा की जरूरत नहीं है, मेरे पास अच्छा पैसा है, वीकली जो है मुझे 20 आवर्स काम मिलना है, मैं काम करता हूँ। मैकडोनाल्ड में बर्गर बेचना, दे डोंट फील इट्स लाइक एम्बैरेसिंग जॉब, दे फील लाइक प्राउड, आई एम डूइंग ऑन माय ओन, आई एम अर्निंग समथिंग, सो वी हैव टू बी लाइक इंडिपेंडेंट। तो ये जो है एक बड़ी सीख है कि हम फॉरेन में जब जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। वैसे इन इंडिया अगर मैं मेरे बेटे को बोलूंगा कि तुम जाके मैकडोनाल्ड में जॉब करो, तो वो बोलेगा कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ये तो नाइंसाफी कर रहा है, मेरे को काम पे लगाया। बट इफ यू सी इन अ डिफरेंट वे, ही इज गेटिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, लोगों के साथ कैसा इंटरेक्ट होना है, पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत लगता है। When he spend the money, he will understand, नहीं नहीं इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, I have to be cautious about spending the money। तो जब तक उसको ये एहसास नहीं होता है तब तक वो जो है he will not be conscious about his life। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, you can set your career in a nice way। There is another scholarship for the girls, particularly Pragati School scheme, this is specially for the girls। तो आप जो है इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, अप्लाई करो। जो भी गर्ल्स ये देख रही है मेरा प्रोग्राम, यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से लेके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी आती है शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स है एंड वी विल गेट द स्कॉलरशिप फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एक दूसरी स्कॉलरशिप है दैट इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, फॉरेन में जाने के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है एंड विच इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा का पूरा जो है एक्सपेंसेस कवर होता है एंड आई एम द वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप, जिसमें जो है मुझे पूरा फीस माफ था और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 50 लाख रुपए जो है खाना पीना करने के लिए मिले थे, और 1 करोड़ से ऊपर जो है मेरे यूनिवर्सिटीज की फी थी ये गवर्नमेंट ने पे की थी। So this is one of the prestigious scholarships sponsored by central government. दूसरी एक another scholarship है sponsored by the state government of Maharashtra, that is the Rajeshri Shahu Maharaj। This is open for graduation, post graduation and the higher degree like PhD। So there are many scholarships as such। If you just search in the Google, you will come to know more corporate sponsored scholarships after the 12th standard, after the graduation, after the post graduation। So I think so take the positive things from this talk, that if you want to set up your career, you start right now। जो भी ये सुन रहे हैं आपको अभी से सोचना है कि मुझे कहाँ पे जाना है। जीपीएस डाउन करो, तुम्हारा शॉर्टकट क्या है लाइफ का। अगर तुम्हारा शॉर्टकट अगर समझ में आया तुम्हारे लाइफ का, आई एम श्योर यू विल रीच टू द नाइस डेस्टिनेशन। नोबडी कैन स्टॉप यू। जब भी तुम्हारे जेब में पैसा रहेगा ना तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर जेब में पैसा नहीं है तो लाइफ इज मिजरेबल। Nobody can support you, even parents। पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि तब तक ही आपको सपोर्ट करता है। जब तक बोला है मैंने कि तुम आप राजा हो, 5 साल 6 साल तक राजा हो, उसके बाद जो है आपका टाइम आएगा कि वो जंगल में जाना है या ब्यूटीफुल प्लेस पे जाना है। आई होप
everybody wanted to be go to the beautiful place which is exactly fabricated by you only. आपको ही खुद का जगह, खुद का मकाम बनाना है और वहां पे आपको खुद को रहने के लिए जाना है, इसलिए आप खुद का प्लान बनाओ और वो जगह ऐसी बनाओ कि आपका लाइफ, आपकी पूरी फैमिली एंजॉय करे. I wish you all the best. If you have any questions, I'm welcome here to answer you. You can drop down in the chat box if you have any questions, so I can answer in 5 minutes. Couple of questions I will take. Otherwise, I will give the control to the organizer. Pradna madam, you can take the questions if any. Yes, sir. किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. आप अनम्यूट कर सकते हैं. या Hello. Sir, our son is in 10th. He just passed out 10th. Now he'll be doing 11th and 12th. And we are actually thinking to put him in design side. Maybe try for National Institute of Design. Mhm. And after that, we want to send him abroad if possible. Okay. So, you have any suggestion or any advice? Yeah, definitely. After the graduation, अगर उसको डिजाइनिंग में अगर इंटरेस्ट है, अभी डिपेंड करता है कि डिजाइनिंग में उसको what exactly he want to do. He want to do B-Arc or like there are number of designing courses. Okay, अगर उसको अगर B-Arc करना है या कुछ अलग कोर्स करना है, there are n number of courses available right now in the market. Yeah, he'll be planning for industrial design. Okay, so it's well because if you go to the one website, I'm telling you to the all, there is one website called as CBSE where you will get n number of courses and their eligibility. Okay, so yeah, let me just finish this answer first and then I will show you that brochure which is there. Okay, so yes, अगर वो graduation अगर करता है यहाँ पे इंडिया में, then he has to prepare for the GRE. ओके, जीआरई के बाद जो है वो एमएस के लिए बाहर जा सकता है, या अभी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है, दिस इज रियली अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. तो हमें जो है ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है कि रियली उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले. बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि लाइक ओके दे विल ऑफर यू द कोर्स, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं होता है. एंड इफ यू डोंट हैव प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, ही और सी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. जैसे कि मैंने बोला है आपको कि आज के डेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बी डिग्री आपको मिल सकती है आराम से. लेकिन वही बंदा अगर बीटेक करता है फ्रॉम नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक IIT NIT, आई एम श्योर कि उसका और उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. अगर वो जॉब में मार्केट में अगर जाता है जॉब के लिए, तो पर्सन हु इज हैविंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज विल बी प्रिफर्ड ओवर द प्लेन थेरोटिकल नॉलेज. बीए के लिए क्या होता है कि थेरोटिकल कोर्सेज होते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल्स. तो बीटेक जो होता है, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अभी आज के डेट में कोविड की महामारी है, तो कोविड की रिलेटेड क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे कि हो सकता है वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन प्यूरिफायर हो. तो ये IIT के बंदे जो है या स्टूडेंट जो है अभी से सोच रहे हैं एंड दे हैव द प्लान कि हमें जो है इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है. बट इफ यू सी द सेम कॉलेज वेयर B or sort of courses are going on, they think traditionally. Okay, so this is what the difference is. तो आपको उसको ऐसे कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिट करना है कि जहाँ पे फैसिलिटीज हो. जस्ट एडमिशन से कोई भी डिग्री लेना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, एडमिशन लिया, डिग्री लिया, बट इट शुड बी सर्वाइव इन द मार्केट. सो दिस इज द, एंड इफ यू वांटेड टू गो फर्दर, definitely he should go for the GRE and definitely he will get a good institute in the abroad university. Any Yes, more? yeah. Thank you very much, Dr. Chandan. And it was a very good session from your side. Thanks a lot for that. Thank you very much indeed. Okay, madam, I think there is no. Sir, Madam. sir, can you say something about fashion designing? Yeah, fashion designing, one of the fascinating field in this particular recent modern era. So definitely there are many institutes in India which give you the good degree. Like take the example of Fashion Institute of
Navi Mumbai. You know, there is a one institute at Khagar, which is also offering the good degree at fashion field particularly. And there are many many institute which offer you the fashion designing courses. So if you go to the CBSE website portal, you will get the list of the institute and their eligibility. Okay, their eligibility and their recognize particular institutes for that particular course. Okay, so yeah, Yes, that's sir. good field to go for. Thank you, sir. Hello. Huh, madam? There is one question. Can you provide site name of exams after 10th and 12th standard? Which So exam? I think the question is for the exams which can be given in general. So I think depending upon the course, we can just Google it out and we can get the ideas, right? Suppose if he or she wanted to go to abroad, then SAT is the exam. If he or she start preparing for the SAT exam from the 10th onward, or there are some national that exam sponsored by the government of India, that is National Talent Search sort of exams. So that can be practices by the students, like from the 8th standard onward. उसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है बच्चों का बढ़ जाता है. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है स्कॉलरशिप्स के लिए, you just go for that. Or equally you can think about this sort of there is a pre-SAT exam also. SAT के पहले pre-SAT भी होता है, वो colleges run करती है. So by that way you can have a practice and you can get into कि क्या होता है exactly ये exams के बारे में. जब तक आप exam नहीं देंगे तब तक आपको वो पता नहीं चलेगा. So, I have one question about BMS. So, can you tell about BMS, Bachelor's of Management Study? You want to go to abroad or in India? Oh, no, in India only. Okay, so if you want to go to MBA particularly, master degree or Actually, it's a bachelor degree for right now, like BBA you want to do? BMS. BMS, okay. BMS, yeah, you can, there are good institutes in India or colleges particularly. Nowadays, BBA or related to the commerce or related to the management field, there are n number of degrees. But I would say, go to the institutes which are really recognized and will give you the good feedback regarding that particular field. जैसे कि CBSE का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जो है आइडियाज मिलेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट वो कोर्स तुम्हारे को ऑफर कर सकता है. अभी आई विल नॉट गिव द नेम्स हियर, अदरवाइज वो क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा कि मैं जो है किसी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ. मुंबई में भी वो सारे अच्छे कॉलेजेस है. ओके, उनका खुद का एक एग्जाम भी है, एंट्रेंस एग्जाम भी है, या कुछ एलिजिबिलिटी भी है जो मेरिट लिस्ट भी लगता है. बट दैट्स गुड. ओके, इफ यू गो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द further master degree. Only graduation is not so career oriented. If you go to the master like MBA or MS related to that particular field, definitely it will be helpful for your career point of view. Okay. So I can become an human resource manager if I took BMS? Yeah, you can, because there is a specialization. If you go to the in a master degree, you can go to the HR or e-commerce. There are n number of specializations that will be decided by you when you entered in that particular PG, that is a master's. So if you are interested in HR, so you can go for the HR. Okay, thank you, sir. Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, I want to know about the freelancer photography. Say again, I'm not getting you. Sir, I want to know about freelancer photography. Okay, photography. Yes, listen, because if you want to know the courses, I will not give the direct answer for you कि ये कौन से institute में होगा, क्योंकि because that is not my field. But there is a one voucher I will show you where you can search for the
just a minute. I can share that with you people. So by that way, you will understand कि ये recognize है. Okay. So this is a compendium of academic courses after 12th. अगर आप सोच रहे हैं after 12th अगर मुझे ये particular course करना है, so all these are the courses listed out. Okay. जो भी आपको करना है. Okay. आपने क्या बोला था? It is related to what? Say again. Free photography, sir. Photography. Okay. Look, this is a 18 particular page number. This is available on the compendium of academic courses after 12 and +2. So if you go to the Google, just type this and go to the particularly this serial number 84. You will understand what are the institutes and what are their eligibility. Like take the example of cinephotography or simple photography. You will understand कि कौन से institute ये program offer करते हैं. Okay. If you are, Yes, sir. okay, ये PDF है. गूगल अगर करेंगे आप गूगल आउट तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा डिटेल दिया जाता है. अभी अगर समझो मैं 84 का अगर लेता हूँ जस्ट एज ए एग्जांपल, I have to scroll down a little bit more. But as such, I am not expert to tell you any courses and where it will be. You understand? क्योंकि क्या होगा कि that will not be systematic in one stroke, but we have Yes, to sir. go through the literature which is exactly available. जैसे कि अभी देखो 84. This is 84 courses. Yes, administration, business management. Suppose serial number 84. Photography 84. Now here number they have not given, so I have to go through this. So it is a bit difficult to find out now. What's selection? Okay. So this is the compendium where you will get all sort of courses. जो भी आप मन में लाएंगे कि मुझे ये देखना है. Okay, जैसे कि अभी देखो कि नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है. This is something special. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिया रहेगा कि ये जो है तुम्हारे इतने इंस्टीट्यूट है यहाँ पे ये कोर्स देते हैं. And these are the nationalized institute. यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया कि कौन सा बच्चा जो है ये कोर्स ले सकता है. 12th के पास 12th के बाद अगर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर है उसका तो ये कर सकता है. जैसे कि फिजिक्स साइंस, फिजिकल साइंस है, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, रोबोट्स है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है. Okay, all these are the courses where you will have their institute belongs to that and their eligibility. Okay, आपको मैं अभी ये थोड़ा फोटोग्राफी का दिखाता हूँ कहाँ पे आता है देखते हैं. फॉरेस्ट्री, ओशनोग्राफी, मैथमेटिक्स, वेटरनरी, वाइल्ड लाइफ, सोलॉजी. Okay, sir. Anthropology. So you can go to the Google and you will get it. अगर आपको नहीं मिलता है तो just I will pass this PDF to the organizer and they will let you know. So because this is the way you will understand कि कौन सा कोर्स कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट करती है. These all are the nationalized institute. अभी देखो ये मास कम्युनिकेशंस है. ये मास कम्युनिकेशंस में बहुत सारे कोर्सेज आएंगे जैसे कि कोरियोग्राफी है, डायरेक्शन है, फिल्म ड्रामा है, then fine art है, then vocal animation से. हाँ यहाँ पे आएगा तुम्हारा फोटोग्राफी something. Sir, Yeah, this one. This is the photography. You can see here, College of Art, Delhi. Then these are the institute. National Institute of Photography, Mumbai. Mumbai में भी है. Then we have in Calcutta. So these are the topmost institute where you will get the
the proper photography course, and the eligibility is only any 12 class. 12 पास जो है कोई भी बंदा ये कोर्स कर सकता है. So this way you can find out the institutes. ये वाउचर जो है मैं ऑर्गेनाइजर के पास छोड़ दूंगा, मेल कर दूंगा, and you can get it. Okay, any more questions? I suppose Pradna ma'am. Okay, thank you, sir. Sir, Thank you. I think sir आपने सारे questions Sir. this is the last question. This will be the last question. Jyoti ji, you want to say something? sir, which type of accountant entrance course in abroad is there? थोड़ा लाउड बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है आपका. Sir, which type of sir for what? Sir, which type of account course the entrance exam is there in abroad? In abroad? For you mean CA sort of courses, chartered accountant. Am I right? If you want to go to the graduation for the commerce type of field, so there is a specialization in abroad. There are the like choice-based subjects. So any person can select any subject. Suppose if you go to the commerce person can select the any subjects of the arts or science. So this is the liability. Okay, but you're talking about something chartered account sort of courses in abroad. Yes, you can do it. Like in India, it is a special board for the CA, which is a government recognized जो chartered account होता है, वो through that particular board only exam pass होता है. लेकिन बाहर के देश में जो होता है, it is a like a one particular course. जैसे कि हमारा एक स्टडी कोर्स होता है कि हमारा म्यूजिक है या you can have like कॉमर्स है, वैसे ही एक स्टडी कोर्स है, उसमें तुम एक सब्जेक्ट ले सकते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंट. तो उसमें जो है आपको डिग्री जो है बैचलर का ही मिलेगा, बट दैट हैविंग द सब्जेक्ट चार्टर्ड अकाउंट. एनी मोर? Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, हे कंपेंडियम which म्हणजे तुम्ही जे शेअर केलंय ते पण आम्हाला जर पाठवाल किंवा शेअर हो. कराल तर खूप छान होईल. Yes, yes, madam. Huh? Yes, yes. Okay. So आता मी I propose a vote of thanks actually. So today's honorable speaker, Dr. Nandakishore Chandan sir, respected teachers present here, parents and dear students. It is my privilege to propose vote of thanks on this occasion. I, Dr. Pradna Lokhande, on behalf of Kritagnyata Foundation, I extend a very hearty vote of thanks to Dr. Nandakishore Chandan sir, who took his valuable time and gave us an excellent coverage of his life experiences, and also gave us a very diverse ideas of various fields that our children can choose these fields as their careers. I also thank again our sir only for inspiring us and giving us very, very valuable information. And I'm sure the information, sir, you shared such a information that will definitely help all the participants to decide their careers. I also heartily thank all the teachers, parents and students, participants for attending this session. I also thank Shelar sir, Rahul sir, Sakshi madam for all the technical support. And I also heartily thank Yogesh Darade sir of MJ College for providing this Zoom platform. I heartily thank our team of Kritagnyata Foundation. I also thank our mentor and advisor, Sanjay Ghodke sir, for being present here. I thank you, each one of you, very heartily. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. End करूया ना lecture? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Thank Dr. Sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank We are Thank you so ending much, this sir. meeting. Thank you so much, ma'am. Thank you.
Welcome. Thank you, ma'am. Thank you.